गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टडिंग एनिमल न्यूट्रिशन और हमारा आज के दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है फीडिंग ऑफ इन्फेंट्स ग्रोइंग एनिमल्स, थंब रूल मेथड्स ऑफ फीडिंग and the feeding and care of pregnant and lactating animals. In our past classes, during the nutrient requirement classes, we have already discussed much of these content. आज हम इसका overview, brief overview देखेंगे, ठीक है? We have already discussed this in the nutrient requirement classes. Then we will also discuss about the metabolic disorders of animals, and mostly because of production disorders. Then why do we need to feed the infant and growing animals? Why do they need extra care? Okay, why do they need extra care and special treatment and special nutrient requirements? Because see, during the birth, okay, birth के टाइम पे जो माइक्रोबियल लोड और जो माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, वो ही थ्रू आउट लाइफ, और जब एनिमल जो है ग्रोइंग एनिमल स्पेशली, ठीक है, उस टाइम पे ग्रोइंग एनिमल जो है वो ग्रोइंग एनिमल की जो ग्रोथ होती है एंड जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए, ओके, तभी वो फार्म जो है वो प्रोडक्टिव माना जाता है। ओके, बिकॉज दीज आर द ग्रोइंग एनिमल्स आर द फ्यूचर स्टॉक। ओके, इसीलिए उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज। और सेकेंड चीज ये भी है बिकॉज दे सफर फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेज एंड मोस्टली डायरिया, ठीक है। मोस्टली अगर आपने फार्म में देखा होगा तो जो ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं, स्पेशली द पोस्ट वीन्ड एनिमल्स, ओके, आफ्टर वीनिंग ऑफ द एनिमल्स, calves मोस्टली, तो वो मोस्टली डायरिया से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, पैरासिटिक डिजीजेस जो कि डायरिया की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं, तो मोस्टली दे सफर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीजेस। एंड इफ दे आर हाउस्ड पुअरली और एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं है एंड अदर डिजीजेस गेट प्रेसिपिटेटेड। ओके, तो इसीलिए इस टाइम पे उनकी ग्रोथ, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज फॉर लैक्टेटिंग एनिमल्स एज वेल, ठीक है। उस टाइम पे भी एनिमल्स आर वेरी ससेप्टेबल टू मल्टीपल प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जब हमने मिनरल की डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर्स पढ़ी थी। सो हाउ द लैक्टेटिंग एनिमल्स, द पार्चुरेंट एनिमल्स, पोस्ट पार्चुरेंट एनिमल्स आर वेरी ससेप्टेबल टू मल्टीपल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द मिल्क फीवर, okay, hypocalcemia, then they are also very susceptible to hypomagnesic tetany, grass tetany, okay, and PPH, post-parturient hemoglobinuria, that is also there because of hypophosphatemia. Then they are also very susceptible to ketosis because of negative energy balance, okay. So all these diseases are mostly found in these classes of animals. इसीलिए उस टाइम पे their care and management, their proper feeding becomes very essential. And then starting from the infant animals, okay, तो infant, as soon as there is the birth of the animal, उस टाइम पे immune status animal का बहुत low होता है, and you must be knowing that whenever the immune status is very low, तो they are very susceptible to multiple infectious diseases, okay, infectious diseases से बहुत susceptible होते हैं। तो as soon as the birth is there, सबसे पहले तो colostrum feeding becomes very important because colostrum is rich in immunoglobulins and the digestive system of the infant, तो उस टाइम पे जो intestine है वो large molecules of immunoglobulins, large molecules of proteins को वो absorb कर पाता है। otherwise later on enzymatic breakdown शुरू हो जाती है। within first 2-3 days it can it can absorb as such, immunoglobulins को as such absorb कर सकता है, and colostrum is rich in immunoglobulins, ठीक है। it is very rich in immunoglobulins, the protein content is very high, colostrum का protein content as compared to the milk जो बाद में होता है whole milk, उसके comparison में immunoglobulin content and the vitamin content, all that is very high. इसीलिए उस टाइम पे it becomes very important that the colostrum feeding is initiated in the beginning only. And then the neonatal period, okay, that is also very critical because metabolic immune development, as I've mentioned, and then later on the rumen maturation also begins. So rumen maturation needs to be rumen also needs to be mature, so उसके लिए rumen microbes needs to be developed. तो इसी के लिए calf starter हम start कर देते हैं। Then
growth में increase in the body weight. So what is exactly growth? Growth is the physiological increase in the body weight. ठीक है, तो उस टाइम पे भी growing phases में भी it becomes very important. ठीक है, ताकि and especially for the, अगर हम calves की बात करें तो growing is important, क्योंकि तभी तो मेच्योर बॉडी साइज जल्दी से रीच होगा. ठीक है, मेच्योर बॉडी साइज रीच होगा, देन द एनिमल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग milk and etc. Then whereas in the case of sheep and goat, okay, इसमें इनके cases में because they are also utilized for meat production. In the cases of pigs as well. So because they are utilized for meat production, तो उनके cases में growing stage becomes very important, क्योंकि उनको mature body weight जल्दी से जल्दी reach करवाना होता है. इसीलिए तो nutrient requirements during this phase also becomes very important. So high growth rate demands होती हैं उस time पे, and protein requirement उस टाइम पे बहुत हाई होती है as compared to the maintenance and the adult protein requirements. Then the digestive system भी उस टाइम पे immature होता है, और rumen जो है वो ferment भी नहीं कर पाता. Okay, तो pre-ruminant calves जो होते हैं, pre-weaned calves, pre-ruminant calves, वो essentially monogastric animals की तरह ही फंक्शन करते हैं, बिकॉज रूमन में माइक्रोबियल डेवलपमेंट नहीं होती, विच मीन्स कि उनको वही सारी वाइटामिन रिक्वायरमेंट्स सेम रहेंगी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ेगी. whereas we have already discussed how in the case of ruminant animals the rumen microbes are able to synthesize especially the vitamin B complex. Okay, most of the vitamin B complex, even the vitamin K that is synthesized inside the body itself, तो उसमें only some of the minerals and other such components are required in the diet, जैसे कि nitrogen sulfur ratio. Okay, that becomes essential, otherwise sulfur containing amino acids become deficient. Then secondly, cobalt is also required in the diet so that vitamin B12 can be synthesized from the cobalt that comes from the diet. So ruminants are able to synthesize all these pertaining to the rumen microbial profile that is inside the animals, but that is not so in the case of pre-ruminant calves, क्योंकि उसमें अभी rumen mature नहीं हुआ होता है. rumen becomes mature at 6 months of age. ठीक है, 6 months of age में rumen mature हो जाता है. उससे पहले even before the 3 months क्या होता है कि हम 15 days के बाद we start giving calf starter. Okay, that is and good quality hay also we start giving. तो good quality hay और calf starter, इससे क्या होता है, rumen जो है वो थोड़ा वो अडेप्ट होने लग जाता है, एंड देन आफ्टर 6 months वो फुल्ली मेच्योर हो जाता है. रूमन जो है वो फुल्ली मेच्योर हो जाता है आफ्टर 6 months ऑफ एज. फुल्ली मेच्योर होने का मतलब है कि उसमें इट स्टार्ट्स रूमन माइक्रोबियल प्रोफाइल जो है वो एडल्ट की वो मैच हो जाती है, एंड इट इज एबल टू डाइजेस्ट द क्रूड फाइबर कंटेंट एफिशिएंटली. देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन्फेंट के टाइम पे तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, पुअर इम्यूनिटी होती है, एंड मोर्टेलिटी इज वेरी हाई. ओके, मोर्टेलिटी इज वेरी हाई एंड एडल्ट की प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. इसीलिए ये ग्रोइंग स्टेजेस जो है इन्फेंट से लेके ग्रोइंग स्टेजेस, दिस बिकम इम्पॉर्टेंट, ताकि इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो जाए उस टाइम पे, इम्यून स्टेटस एनिमल का अच्छे से डेवलप हो जाए, देन स्टंटेड ग्रोथ ना हो. ओके, प्रॉपर ग्रोथ जो है उसका एडिक्वेट ग्रोथ हो जाए, एंड समटाइम्स इवन in case of diarrhea and other diseases of the neonatal calves, उस टाइम पे mortality rate is also very high, and then adult productivity is also reduced whenever there will be nutritional deficiency in the initial stages. and जो cross bred calves होते हैं वो काफी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इवन 0.5 kgs पर डे तक ग्रो करते हैं क्रॉस ब्रेड calves. ओके, क्रॉस ब्रेड calves जो है वो 0.5 kgs पर डे तक ग्रो कर जाते हैं, and then whereas buffalo calves 0.4, and then Indian cattle जो है 0.4. okay, Indian cattle जो है वो less than 0.4. okay, this is less than 0.4 kg per day. okay, then colostrum. okay, so you must be knowing that colostrum जो होता है, it is the first milk that is secreted. it is very rich in immunoglobulins, very rich in protein. okay, very nutritious in nature, and it also has laxative effect. And then so it has a laxative effect, so it helps in the expulsion of the meconium. Meconium is the first fecal material that comes out of the infant's body.
So colostrum, first milk that is that is secreted, so it has higher quantities of protein up to 17% versus the normal milk which has around 3.5%. It is rich in immunoglobulins IgM, IgG and IgA, which provides passive immunity. Okay, it provides immunoglobulins, provide passive immunity to the growing calves, and proteins are able to cross the intestinal wall within the first 12 hours of life, as I've already mentioned. Initial stages में as such protein can be absorbed from the body, from the intestine. Otherwise in later stages after 12 hours what happens is that कि these protein starts breaking down. ठीक है, तो ये protein जो है immunoglobulin, it will break down further because these are protein in nature. Then, or it is also rich in vitamin A, D, E, minerals, calcium, magnesium, iron, phosphorus, and has a laxative effect, which helps in expulsion of the meconium. It becomes very important. First fecal matter that comes out is the meconium. Sometimes it has been asked कि meconium क्या होता है. Okay, MCQs में पूछ लेते हैं. And it should be fed within 2 hours of birth. Continue for the first 3 days. बेसिकली कोलेस्ट्रॉम जो है वो धीरे धीरे टेपर होने लग जाता है आफ्टर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, एंड उसके बाद नॉर्मल मिल्क स्टार्ट्स, एंड देन द कोलेस्ट्रॉम प्रोटीन ऑलरेडी मेंशन. देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, मिल्क रिप्लेसर. मिल्क जो है हम टेपर इन करते रहते हैं अप टू वीनिंग. ठीक है, वीनिंग तक हमने मिल्क जो है वो रिमूव कर देना होता है, एंड एनिमल इज सेपरेटेड फ्रॉम द डैम्स. तो calves are separated from the dam, उसको बोलते हैं वीनिंग पीरियड. ठीक है, इसमें होता है 3 months तक होता है ये. देन मिल्क रिप्लेसर्स फेड व्हेन, सो मिल्क रिप्लेसर बेसिकली यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसकी फॉर्म कौन सी होती है. काफ स्टार्टर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड मिल्क रिप्लेसर जो होता है वो ग्रूअल फॉर्म में होता है. ये पूछा जाता है यहाँ से. सो काफ स्टार्टर इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड द मिल्क रिप्लेसर इज इन द ग्रूअल फॉर्म. So it should have high biological value. So milk replacer is basically जब हम milk जो है वो reduce कर देते हैं, हम calf को dam का milk नहीं देते, instead we will give the milk replacer. So that is the meaning of milk replacer. Then calf starter, उसके बाद as I mentioned हमने इसको day 15 से calf starter start किया जाता है. Okay, it is started from day 15. डे 15 से काफ स्टार्टर शुरू कर दिया जाता है. आफ्टर 2 weeks बेसिकली आफ्टर 2 weeks काफ स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड देन रूमन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, एंड बेसिकली रूमन डेवलप होने लग जाता है, रूमन ससेप्टेबल होने लग जाता है सॉलिड फीड के लिए. देन काफ स्टार्टर में 23 to 26% क्रूड प्रोटीन रहता है, 18 to 19.5% DCP, एंड देन द TDN परसेंटेज इज 75%. यहाँ से भी पूछ लिया जाता है. अप्रॉक्स वैल्यूज यहाँ से कभी कभी पूछ लेते हैं. ठीक है, 23 to 26% क्रूड प्रोटीन इट शुड हैव, 18.8 to 19.5 बेसिकली अराउंड 19% DCP, एंड देन TDN शुड बी 75%. तो अर्ली वीनिंग जो है वो तभी पॉसिबल हो सकती है अगर गुड क्वालिटी स्टार्टर प्रोवाइड किया गया हो. ठीक है, काफ स्टार्टर, ताकि वो एनिमल जो है वो अडेप्ट हो जाए फॉर हैविंग द सॉलिड फीड. देन प्री रूमिनेंट फेज बोलते हैं बर्थ से 3 months तक, एंड पोस्ट रूमिनेंट आफ्टर 3 months, क्योंकि 3 months के बाद रूमन स्टार्ट डेवलपिंग, एंड 6 months पे वो मेच्योर हो जाता है. देन फीडिंग ऑफ द प्री रूमिनेंट काव्स, यानी कि 3 months तक. ठीक है, प्री वीन्ड काव्स को प्री रूमिनेंट काव्स कहते हैं. तो रूमन जो है एनाटॉमिकली प्रेजेंट, वो तो एनाटॉमिकली राइट फ्रॉम द बर्थ इट विल बी प्रेजेंट, बट इट वो उतना डेवलप नहीं होता. एंड सेकेंडली ईसोफेजियल ग्रूव जो होता है वो बाईपास कर देता है मिल्क को. ओके, तो मिल्क बाईपासेस द रूमन वाया ईसोफेजियल ग्रूव. तो जो एनिमल जब आफ्टर बर्थ ईसोफेजियल ग्रूव इज वेरी एक्टिव, तो वो क्या करेगा, वो मिल्क को फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज फ्रॉम द ईसोफेगस वो डायरेक्टली उसको एबोमेजम में पहुंचा देता है. ठीक है, इट विल बाईपास द रूमन रेटिकुलम ओमेजम. अदरवाइज क्या होता है, अगर ये ईसोफेजियल ग्रूव फुल्ली क्लोज ना हो एडल्ट एनिमल में, फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट इट गेट्स क्लोज्ड. बट क्या होता है, अगर इनिशियली ये डेवलप ना हो तो फिर एनिमल में एबोमेजम की जगह मिल्क जो है वो रूमन रेटिकुलम और ओमेजम और वहां पे चला जाता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एबोमेजम वो बाकी पोर्शंस ऑफ द रूमन रेटिकुलम ओमेजम यहाँ पे चला जाता है. इससे क्या होता है, ठीक है, इससे पैथोलॉजिकली वहां पे नेक्रोसिस होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नेक्रोसिस होने लग जाती है. ओके, सो दैट पार्ट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड. तो रूमन जो होता है उसका टावल लाइक अपीयरेंस हो जाता है पैथोलॉजिकली.
देन प्री रूमिनेंट फेज में रूमन इज एनाटॉमिकली प्रेजेंट बट फिजियोलॉजिकली अनडेवलप्ड. डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है आफ्टर 3 months. ओके. देन डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फेज. देन प्रैक्टिकल काफ शेड्यूल जो है इसमें क्या होता है, काफ को अलाउ करना चाहिए. सो दिस इज द बेसिक थिंग. ठीक है. कोलोस्ट्रम फीडिंग, हैंड फीडिंग भी की जा सकती है. देन आफ्टरवर्ड्स हैंड फीडिंग इज बिगिन. पहले तो कोलोस्ट्रम फीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट 3 days तक. आफ्टर दैट हैंड फीडिंग ऑफ द एनिमल यूजिंग मिल्क रिप्लेसर कैन ऑल्सो बी डन. देन धीरे धीरे वी विल रिड्यूस द मिल्क. ओके. मिल्क जो है हम धीरे धीरे वी विल ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सॉलिड फीड एज वेल. ठीक है. फ्रॉम डे 15 और द 2 weeks of age, hay or calf starter we will introduce. Then vitamin A supplementation becomes very important. ठीक है. Vitamin A supplementation is very important because animal जो है as we have discussed, vitamin A जो है वो एंटी इन्फेक्टिव वाइटामिन होता है. So that is why it is important. और ये इम्यून स्टेटस को भी इम्प्रूव करता है एनिमल के. देन ग्रीन फॉडर, समटाइम्स ग्रीन फॉडर जैसे कि मेज जो है उसमें ऑलरेडी बीटा कैरोटीन वाइटामिन ए इज वेरी गुड. देन अदरवाइज इट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड एक्सटर्नली. एंड समटाइम्स कोलेस्ट्रॉम अवेलेबल नहीं होता. उस टाइम पे क्या होता है, आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉम वी हैव टू मेक. सो आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉम के लिए 275 ml of warm water alongside 1 raw egg and 3 ml castor oil and then the vitamin A added with the whole warm milk. ठीक है. फिर उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक्स. सो दीज एंटीबायोटिक्स कैन बी अवॉइडेड. इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक्स वी कैन ऐड सम अदर ऑल्टरनेटिव. Okay, then heat it to 40 degrees Celsius and then fed 3 times per day. Okay. Initially animal जो है, calf जो है, उनकी feeding 3 times per day होती है. फिर धीरे धीरे वो reduce कर दी जाती है. Then next is the, so milk is left in the udder as long as possible, as long as natural instinct of calf is to. So this is how we will train the animal for suckling. Then from 15 day onwards good quality hay provide किया जाता है and calf starter also gradually. ठीक है. 100 grams per day से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड धीरे धीरे 250 grams, 500 grams, देन इट विल बी इंक्रीज्ड. देन मिल्क रिप्लेसर एज वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड ग्रुअल फॉर्म में होता है. एंड देन मिल्क रिप्लेसर जो है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूमन फ्लूइड ड्रेंचिंग ऑफ एडल्ट एनिमल्स, हेल्प्स रिड्यूस द होल मिल्क यूज. देन क्वालिटी क्राइटेरिया, इट शुड हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, गुड क्वालिटी प्रोटीन and should have adequate energy fortified with vitamins and minerals to prevent scoring. Scoring means diarrhea. Okay, scoring here means diarrhea. So this is just an example. Okay, it's just an example of the milk replacer जो हम बना सकते हैं externally. देन काफ स्टार्टर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. ओके. 23 to 26% क्रूड प्रोटीन, अराउंड 19% DCP एंड 75% TDN. देन इसमें एंटीबायोटिक या इवन प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन की जा सकती है. देन ओके, वी हैव डिस्कस दिस. देन फीडिंग शेड्यूल, दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो इनिशियली 1 to 3 days में कोलेस्ट्रॉम इन 3 फीड्स प्रोवाइड किया जाता है. देन आफ्टरवर्ड्स इट इज रिड्यूस्ड. द होल मिल्क होता है पहले 1/10 ऑफ बॉडी वेट एंड देन फर्दर इट इज रिड्यूस्ड. सबसे पहले 4 to 7 days में होल मिल्क स्टार्ट कर देते हैं इन 3 फीड्स. देन 8 to 14 days तक होल मिल्क प्रोवाइड किया जाता है एंड देन ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन ऑफ काफ स्टार्टर विल बी देयर. काफ स्टार्टर एंड गुड क्वालिटी है. देन इसको टेपर इन किया जाता है 1/10 ऑफ बॉडी वेट से 1/15, 1/20 एंड देन 1/20 बॉडी वेट तक किया जाता है. एंड आफ्टर 2 to 3 months, आफ्टर 3 months जो है मिल्क जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया जाता है. एंड एडलिब गुड क्वालिटी है, लेग्यूम है इज प्रोवाइडेड. एंड देन काफ स्टार्टर की अमाउंट भी 500 grams तक हो जाती है. एंड आफ्टर दैट ग्रोफेजेस विल बी प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स. सो फ्रॉम थर्ड डे ऑनवर्ड्स कल्टिवेटेड ग्रीन, फ्रॉम थर्ड डे ऑनवर्ड्स, from 3rd month onwards. Okay, from 3rd. So this was pre-ruminant calf. अब pre-ruminant calf के बाद after weaning of the animals, 3 months पे weaning हो जाती है. So after weaning of the animals, so cultivated green forages, hybrid napier, paragrass, guinea maize, ये grasses जो हैं, ये green forage जो है रफेज, वो एनिमल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. So we will start increasing its amount. So ग्रीन फॉडर जो है 2 kg पर डे तक दे सकते हैं आप 3 months तक. ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करोगे एट 6 months, तो आप उसको 5 to 10 kgs तक
you will increase it. Then type 1 concentrate mixture 0.75 kg दिया जाता है, then later on again it will be increased to 1 kg and 1.5 kg. Then green leguminous forage जो हमने discuss किया था, इसमें crude protein content is very high, then the calcium content is also good, then vitamin minerals are also very high. तो legume forage जो है बरसीम, ल्यूसिन, अल्फाल्फा, ये सब हम promote करते हैं. काउपी wilted in sun 3 to 4 days. तो basically wilting से क्या होता है, इससे chances of bloat will be reduced, okay, because जो ये होते हैं ल्यूसिन लेग्यूमिनस फॉडर्स जो होते हैं, these have ये जो होते हैं ये ब्लोट कॉजिंग होते हैं. ठीक है, दो टाइप्स के ब्लोट होते हैं. ओके, तो ये जो है ये ब्लोट कॉज करते हैं बिकॉज इसमें सपोनिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, सोप फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये ब्लोट कॉजिंग भी होते हैं, इसलिए इनकी विल्टिंग कर दी जाती है ताकि हे बन जाए. ओके, गुड क्वालिटी हे इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस. देन आफ्टर 6 months ओके जो हीफर्स जो होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं बुल्स से. देन उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो चेंज्ड एंड देन बेस्ड ऑन द feeding standards. Then maintained on good roughage, minimum concentrates. So concentrate feeding will depend on the type of animals. ठीक है, classification. So because the nutrient, the energy levels will vary. Then from 7 to 24th month, concentrate mixture 16% DCP, 70% TDN. Then leguminous fodder 15 to 20 kg per head. Then concentrate जो है वो 1 kg per day दिया जाता है maintenance के लिए, around 1 kg per day. Okay, then roughage जो है 2.5 kg per day, 2.5 kg for 6 to 12, 2.5 kg per kg body weight होगा ये. Normal growth rate again we have discussed. Indigenous cattle, buffalo ये उल्टा दिया है, क्रॉस ब्रेड कैटल का 0.5 होगा और इंडिजिनस का 0.4, लेस देन 0.4 होगा. देन थंब रूल मेथड. सो बेसिकली थंब रूल मेथड जो हमने सैवेज का फीडिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, दैट इज ओनली थंब रूल मेथड. तो क्या होता है, ड्राई मैटर जो होता है, बेसिकली सबसे पहले ड्राई मैटर देखते हैं कि कितना कैलकुलेट करना है. फॉर कैटल इट इज 2 kg पर, बेसिकली जो 2% ऑफ बॉडी वेट है दैट इज ओनली 2 kg पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट, बेसिकली 2% ऑफ बॉडी वेट. देन फॉर बफलोज 2.5% दैट इज 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट. देन ड्राई मैटर इज पार्टीशन, 2/3 जो होता है वो रफेज होता है एंड 1/3 एज कंसंट्रेट्स. ओके, 2/3 एज रफेज एंड 1/3 एज कंसंट्रेट्स. दिस इज एज पर द सैवेज ट्रीटमेंट मेथड. अगर ग्रीन लेग्यूम फॉडर है तो इट विल बी रिड्यूस्ड फर्दर. ओके, 1/4 जो है वो ग्रीन लेग्यूम होगा एंड 3/4 विल बी द ड्राई फॉरेज. ओके, देन मिल्क प्रोडक्शन के लिए फॉर एक्स्ट्रा 2 kg मिल्क 1 kg एक्स्ट्रा कंसंट्रेट विल बी प्रोवाइडेड. और बफलोज में फॉर एवरी 2.5. ओके, then extra allowance is provided for pregnancy. लास्ट ट्राइमेस्टर में 1.25 kg 1.75 kg एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है. ओके, सो दिस वाज एग्जांपल. सो एज वी हैव मेंशन. ठीक है, ज़ीबू कैटल के स्ट्रॉ जो है वो 4 kg एंड क्रॉस ब्रेड एंड बफलोज के लिए 4 to 6 kg स्ट्रॉ मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, देन कंसंट्रेट मिक्सचर जिसका 14 to 16% DCP एंड 68 to 70, बेसिकली 70% TDN, बेसिकली मेंटेनेंस के लिए. ओके, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड 16% DCP एंड 70% TDN, ये मेंटेनेंस के लिए होता है. और ज़ीबू कैटल के लिए 1 to 1.25 kg एंड क्रॉस ब्रेड के लिए 2 kg. लास्ट ट्राइमेस्टर में ओके 1.25 kg 1.75 kg रिस्पेक्टिवली ज़ीबू और क्रॉस ब्रेड के लिए. देन एक्स्ट्रा अलाउंस 1 kg एक्स्ट्रा फॉर 2.5 kg ओके इन केस ऑफ ज़ीबू कैटल एंड 2 kg फॉर बफलोज. यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है. 2.5 kg जो है वो बफलोज के लिए नहीं है, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था. 2 kg जो है वो है बफलोज के लिए. ओके, एंड 2.5 kg ज़ीबू कैटल के लिए. ओके, सो एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड करने चाहिए. देन कंसंट्रेट मिक्सचर का 20% CP होना चाहिए, 65% TDN. और कैल्शियम फॉस्फोरस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है because the losses are very high. Then feeding and care of pregnant animals. ठीक है, अभी हमने ये थंब रूल मेथड पढ़ा ना, तो सेम फॉर द प्रेग्नेंट एनिमल्स. ओके, क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल उसमें फीटल डेवलपमेंट होता है इन इवन फॉर द हीफर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्चुरेशन. तब फर्स्ट एंड सेकेंड पार्चुरेशन तक 10% एंड 20% एक्स्ट्रा अलाउंस नीड्स टू बी फेड. ये हमने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी डिस्कस किया था.
So pregnant animals need extra allowance for maintenance, for fetal growth and for building body reserves for the next lactation. इसलिए इनके 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 केसेस में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स्ट्रा अलायंस फीड किया जाए, अदरवाइज दे विल सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स टू पार्ट्स में होते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट देन एक्स्ट्रा अलायंस. जस्ट नाउ वी डिस्कस एक्स्ट्रा अलायंस जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना रहना चाहिए. 1.25 kg एक्स्ट्रा अलायंस होता है क्रॉस ब्रेड वगैरह के लिए, बफलोज के लिए 1.75 kg लास्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे. ओके, देन अगेन उनका बॉडी वेट जो है वो नहीं सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट इंक्रीज होगा, सो दैट विल पर्टेन टू द बॉडी वेट ग्रोथ बिकॉज ऑफ फीटल डेवलपमेंट. बट इसमें जो है इनिशियल बॉडी वेट भी प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. देन फीडिंग मिल्क एनिमल्स के केसेस में दैट इज लैक्टेटिंग काउस. अगेन 2.5 kg जो है this is for buffaloes, 1 kg for 2 kg body weight, 1 kg for 2 kg milk production, that is for the zebu cattle. Then last 3 days before calving, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रांड्स जो होते हैं वीट ब्रांड की लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बिकम वेरी हाई. तो उस टाइम पे ब्रांड यानी कि लेग्जेटिव फीड प्रोवाइड करनी चाहिए. ग्रीन फॉडर कम हो जाती है बिकॉज रूमन जो होता है उसका स्पेस बहुत कम हो जाता है. Then after parturition ब्रांड मार्च देते हैं, जैगरी वार्म वाटर ग्रेजुअली रिज्यूम. तो उस टाइम पे न्यूट्रिएंट डेंस जो होता है, एनर्जी डेंस कंपाउंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. कंसंट्रेट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. देन धीरे धीरे विटामिन ए एंड एटसेट्रा दैट इज फेड टू द एनिमल. लैक्टेटिंग काउ की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट लैक्टेटिंग काउ में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी एक्स्ट्रा अलायंस नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स. तो फिर काउ मिल्क, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द मिल्क फैट परसेंटेज, जिसको FCM कहते हैं, फैट करेक्टेड मिल्क के हिसाब से. फैट करेक्टेड मिल्क के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है. देन क्वालिटी रफेज जो होता है, so बेसिकली उस टाइम पे लेगुमिनस फॉडर प्रोवाइड करना चाहिए. ओके, लेगुमिनस fodder 1 kg per 2.5 kg for crossbred, 1 kg per 2 kg for zebu. Then high yielding cows के लिए 2.5 kg concentrate mixture, 6 kg green fodder from roughages. Lactating buffaloes में extra concentrate at 0.5 kg and along with this 8% bypass protein also should be provided to very high yielding animals. Okay, 8% bypass protein वो आपने याद रखना है हमेशा. Then during the transition period कौन सा होता है, जस्ट बिफोर काविंग एंड जस्ट आफ्टर काविंग. ठीक है, काविंग से जस्ट बिफोर पहले एंड देन जस्ट आफ्टर, दैट इज कॉल्ड एज द पेरी पार्चुरेंट पीरियड और द ट्रांजिशन पीरियड. ठीक है, तो उस टाइम पे ड्राई मैटर इनटेक रिड्यूस हो जाता है, मेटाबॉलिक डिमांड्स काफी हाई होती है और हार्मोनल शिफ्ट होते हैं एकदम से. सो इसीलिए उस टाइम पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एनिमल की इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज प्रोडक्शन डिजीजेस बहुत कॉमन होती है. ठीक है, मिल्क फीवर होता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ROP, कीटोसिस, एसिटोनीमिया, देन डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म, LDA, RDA, देन फैटी लिवर. तो उस टाइम पे दीज मेटाबॉलिक प्रोडक्शन डिजीजेस आर वेरी कॉमन. तो प्री ट्रांजिशन यानी कि ड्राई पीरियड में, उस टाइम पे प्री ट्रांजिशन पीरियड में ड्राई पीरियड होगा. देन अनायनिक सॉल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पढ़ा था DCAB. Okay, we have already discussed it in much detail. तो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज द PTH हार्मोन नीड्स टू बी स्टिमुलेटेड. तो उसको स्टिमुलस के लिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन दैट शुड अकर. देन पोस्ट ट्रांजिशन पीरियड रैपिडली इंक्रीज, क्योंकि क्या होता है, अनायनिक पीएच पे अनायनिक सॉल्ट्स की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन जो होती है कैल्शियम की वो अच्छे से हो जाती है. देन बॉडी कंडीशन स्कोर, जो आइडियल बॉडी कंडीशन स्कोर, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी मेंटेन. देन नियासिन सप्लीमेंटेशन, दैट इज विटामिन B3, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कीटोसिस. देन पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ डॉग न्यूट्रिशन, बेसिकली डॉग्स में ऐसे क्या पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस कैट एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो. सो डॉग्स जो होते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं, they can survive on vegetarian diet but nutrient needs to be needs to be balanced. ठीक है, then carbohydrate physiologically essential, but देखो carbohydrate essential तो होता है बट उसकी quantities जो होती है वो बैलेंस रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में नहीं प्रोवाइड करना. then lactose intolerance,
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो विद एज जो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है डॉग. सो आफ्टरवर्ड्स आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जो होता है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता. देन अगेन 20 to 22% क्रूड प्रोटीन रहता है इनको. देन जो ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं, ग्रोइंग डॉग्स, उसमें रिक्वायरमेंट इज हायर. देन fat भी around 2.5%. So basically essential fatty acids are important in the case of dogs. Essential fatty acids क्यों important होते हैं? Basically for the skin की integrity maintain करने के लिए, cell membrane की integrity maintain करने के लिए phospholipids होते हैं. Then vegetarian diet में proper balance of nutrients. Balanced diet is important. Then arachidonic acid. So arachidonic acid basically क्या होता है, कैट्स की केसेस, कैट्स आर वेरी पिक्यूलियर. कैट्स बहुत पिक्यूलियर होते हैं. इसमें एक्सटर्नली हमको ऐड करना पड़ता है एरेकिडोनिक एसिड. ठीक है, एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है एरेकिडोनिक एसिड. एंड देन डॉग्स जो होते हैं वो लिनोलिक एसिड से डायरेक्टली दे कैन सिंथेसाइज एरेकिडोनिक एसिड, बट कैट्स कैन नॉट सिंथेसाइज. इसलिए कैट्स जो होते हैं वो ऑब्लिगेट कार्निवोर्स होते हैं. कैट्स को आप वेजिटेरियन डाइट पर नहीं सस्टेन कर सकते. क्योंकि टॉरिन भी चाहिए उनको, टॉरिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, देन अरेकिडोनिक एसिड, और दीज आर द थिंग्स दैट उनके पास डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेफिशिएंसी हो जाती है. इवन नियासिन ऑल्सो उनकी डाइट में चाहिए होता है. कैट इज एन ऑब्लिगेट कार्निवोर इवॉल्व फ्रॉम स्ट्रिक्टली कार्निवोरस मेटाबॉलिज्म. ठीक है, सो टॉरिन रिक्वायरमेंट, अदरवाइज ये टॉरिन रिक्वायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें. अदरवाइज क्या होता है, फेलाइन सेंट्रल रेटिनल डीजेनरेशन हो जाती है एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डीसीएम हो जाती है. देन लो बर्थ वेट, देन इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है इसमें. देन प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑल्सो सिमिलर, कंपैरेटिवली सिमिलर, अराउंड 20%. देन सिस्टीन, ग्लाइसिन और सेरीन, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसमें. आर्जिनिन भी चाहिए होता है इनको रिक्वायरमेंट, अदरवाइज अमोनिया टॉक्सिसिटी विल बी देयर. देन नियासिन, अगेन एज आई मेंशन, कैट्स जो होते हैं वो नियासिन जो है वो ट्रिप्टोफैन से नहीं सिंथेसाइज कर पाते. हमने इसको विटामिन की क्लास में भी पढ़ा था. देन विटामिन ए ऑल्सो, ये बीटा कैरोटीन को नहीं क्लीव कर पाती. बेसिकली बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल्सो. देन कैट्स में ग्लूकोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से अगेन कैट्स को वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं देना होता. बेसिकली यहाँ पे इंसुलिन का रोल भी होता है. ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज. एंड कैल्शियम फास्फोरस रेशियो कैट्स में 1:1 होता है, डॉग्स में इट इज 1.2. बेसिकली 2:1 तक जाता है ये, और कैट्स में इट इज अदरवाइज इक्लेम्सिया दैट विल बी देयर. देन रेबिट्स के केस में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सीकोट्रोफी करते हैं. ठीक है, सॉफ्ट फीसेस होते हैं इनमें, हाइंड गट फर्मेंटर होता है. डाइजेशन इसमें सीकम में डाइजेशन नहीं, यहाँ फर्मेंटेशन आनी थी, डाइजेशन की जगह यहाँ आएगा फर्मेंटेशन. सीकम कोलोन में फर्मेंटेशन होती है. तो माइक्रोबियल काउंट 10⁻⁹ 10⁻10 पर ग्राम. सॉफ्ट फीसेस जो होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के फीसेस होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड. जो सॉफ्ट वाला होता है उसको वो इंजेस्ट कर लेता है. तो सीकोट्रॉफ जो सॉफ्ट म्यूकस कोटेड होते हैं, इसमें क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, then vitamin B complex, vitamin A, then minerals are also very high, then crude protein, microbial protein, तो उसको ये दोबारा से डाइजेस्ट कर लेता है. B complex, amino acids, volatile fatty acids which are essential for the nutrition. Then rabbits are efficient feed converters, तो ये इनका FCR भी बहुत हाई होता है. ठीक है, FCR very high. Then reproductive potential is also very high in the rabbits. देन फाइबर रिक्वायरमेंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. फाइबर ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसमें. देन नेक्स्ट लेबोरेटरी एनिमल, हमने ऑलरेडी गिनी पिग का पढ़ा था, हाउ गिनी पिग रिक्वायर्स विटामिन सी. 2 mg/kg डाइट. विटामिन सी जो होता है कहाँ लिखा, हाँ, गिनी पिग जो है वो विटामिन सी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स भी नहीं सिंथेसाइज कर सकते. तो इनको 200 mg/kg डाइट में इनको चाहिए होता है. ठीक है, ग्लूकोनोलेक्टोन सिंथेस जो होता है वो नहीं होता है इनमें. देन एंड इवन द मंकीज एज वेल, मंकीज के केसेस में भी चाहिए होता है. सो दिस वाज ऑल. लेट्स डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. सो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स. क्योंकि प्रोडक्शन के केसेस में लॉसेस आर वेरी हाई. आउटपुट इज वेरी हाई, तो इनपुट अगर लो होगा विच मीन्स कि डाइटरी इनटेक या एनिमल की बॉडी में रिजर्व्स नहीं होंगे, सो इट विल सफर फ्रॉम
नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा व्हेन द आउटपुट इज वेरी हाई बट द इनपुट इज वेरी लो। जब आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, इनपुट बहुत कम होता है, देन जो होता है प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। So diseases arising due to imbalance between input, that is the dietary nutrients, and the output, that is the production. तो ये जो डिस्टर्बेंस हो जाता है होम्योस्टैसिस का, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस होता है इंटरनल होम्योस्टैसिस का, इसकी वजह से एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस रेट्स हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल मेटाबॉलिक इन ओरिजिन। ठीक है, बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से है, एंड समटाइम्स इवन मैन मेड क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज प्रोडक्शन जो है हमने ही उसको इंक्रीज किया हुआ है। बेसिकली वी वांट द प्रोडक्शन टू बी वेरी हाई, इसीलिए वी नीड टू, जब तक हम उसको डाइटरी सप्लाई नहीं करेंगे, इनपुट नहीं देंगे, सो प्रोडक्शन बिकम्स वेरी हाई, एंड देन बिकॉज ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स ये जो है प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, प्रोडक्शन डिजीजेस हो जाती हैं। तो पार्चुरेशन के टाइम पे ये काफी ज्यादा हाईली ससेप्टेबल होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो मेंटेन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स, पीटीएच हार्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन D3, ये बात हो रही है मिल्क फीवर की, मिल्क फीवर एंड ऑल्सो द रिकम्बेंसी जब एनिमल की हो जाती है उस टाइम पे भी ये रीजंस होते हैं। देन इंसुलिन ग्लूकागोन की कंट्रोल, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं। देन हाई यील्डिंग ब्रीड्स जो होते हैं जैसे जर्सी, एचएफ एंड क्रॉस ब्रेड एनिमल्स, दे आर मोस्टली ससेप्टेबल टू दीज प्रॉब्लम्स। एंड ट्रांजिशन फेज जो जैसे हमने अभी पढ़ा, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल। पेरीपार्चुरिएंट फेज जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। पेरीपार्चुरिएंट यानी कि ड्राई पीरियड, इमीडिएटली बिफोर पार्चुरेशन एंड इमीडिएटली आफ्टर पार्चुरेशन। सो उस टाइम पे डाउन काउ सिंड्रोम, मिल्क फीवर, जब कैल्शियम कम हो जाता है, ग्रास टेटनी, मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीसीमिक टेटनी, ठीक है। देन कीटोसिस, फैटी लिवर, नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स जब इंक्रीज हो जाते हैं, कीटोसिस जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, इवन रूमिनल एसिडोसिस जब, ठीक है, सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस यानी कि सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस या फिर लैक्टिक एसिडोसिस, उस टाइम पे क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हाई फर्मेंटेशन की वजह से पीएच जो होता है वो एकदम से रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इवन लेमिनाइटिस एंड अदर थिंग्स दैट आल्सो डेवलप, तो रूमन एसिडोसिस। देन दीज आर द हब ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विच अकर इन द केस ऑफ प्रोडक्शन एनिमल्स। देन स्टार्टिंग विद द मिल्क फीवर और पार्चुरिएंट पेरिसिस और हाइपोकैल्सीमिया, इसके मल्टीपल नेम्स है। बेसिकली इसमें फीवर नहीं आता है, बॉडी टेम्परेचर रादर गोज डाउन, बॉडी टेम्परेचर इसमें इंक्रीज नहीं होता, कम हो जाता है उल्टा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पार्चुरिएंट पेरिसिस, पार्चुरिएंट एपोप्लेक्सी, देन हाइपोकैल्सीमिया एंड द मिल्क सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, इट इज एफेब्राइल। बेसिकली एफेब्राइल मीन्स इसमें फीवर नहीं होगा, मेन इसका जो नेम है दैट इज अ मिसनोमर बेसिकली। So it is a metabolic disorder of high yielding dairy cattle or buffaloes occurring around parturition, immediately after parturition, basically 24 to 48 hours after parturition. It is primary cause क्या है, hypocalcemia. So it is characterized by weakness, recumbency, paresis, peripheral circulatory failure and then thereby even death in extreme cases. तो सडन कैल्शियम डिमांड्स इंक्रीज हो जाती है, कैल्शियम डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है बिकॉज कोलेस्ट्रॉम एंड देन द मिल्क प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉम में बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम लॉस हो जाता है। देन हाई कैल्शियम डाइट प्री पार्टम पीरियड में, वी हैव डिस्कस दिस मिल्क फीवर इन टू मच डिटेल, जो हमने कैल्शियम पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे डाइटरी DCAB बैलेंस जो होता है, डाइटरी कटाइन अनाइन बैलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। So suppressive active calcium absorption, then bone resorption mechanism. Excess dietary phosphates inhibits the renal alpha hydroxylase. So reduced active vitamin D3, DCAB, high potassium or sodium diet. Basically we want it to be acidic, okay, ammonium chloride या magnesium sulfate, acidic should be provided. ठीक है, हाई क्लोराइड या सल्फेट एसिडिक होना चाहिए, अदरवाइज अगर एल्केलाइन होगा तो पीटीएच हार्मोन जो होता है वो इनसेंसिटिव हो जाता है। देन समटाइम्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज ऑल्सो देयर, जर्सी ब्रीड इज मोस्ट ससेप्टेबल, रिस्क इंक्रीजेस 9% पर लैक्टेशन। देन ऑक्सलेट रिच डाइट, बिकॉज दैट विल ऑल्सो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस,
impaired calcium absorption. Then complete milking in the first 48 hours is a precipitating factor. 3rd to 7th calving most affected. Then deficiency of vitamin D3, reduced calcium absorption, reduced bone resorption process. तो कैसे होता है ये? ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन, सडन कैल्शियम डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड मिल्क. देन देयर इज रिड्यूस्ड प्लाज्मा कैल्शियम. प्लाज्मा कैल्शियम जो है वो रैपिडली एकदम से डिक्रीज हो जाता है एंड हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है. देन पीटीएच हार्मोन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. पीटीएच जो है वो ट्राई करता है कि इसको ये डिजीज ना हो. देन 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये भी इंक्रीज होने लग जाता है. तो इट टेक्स 24 आवर्स टू एक्टिवेट द बोन रिसेप्टर्स. बेसिकली बोन से लेके आना होता है कैल्शियम. ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में होम्योस्टैसिस अगेन मेंटेन करने के लिए तो ये सब नहीं हो पाएगा बिकॉज इसके लिए ज्यादा टाइम लगता है. 24 आवर्स लगेंगे फॉर द बोन से कैल्शियम लाने के लिए हाइपोकैल्सीमिया. एंड रादर बोन्स में भी कैल्शियम जो है वो कम है. एंड सेकेंडली पीटीएच हार्मोन भी इनसेंसिटिव हो जाएगा अगर डीसीए भी इम्बैलेंस होगा एंड एसिडिक पीएच जो है वो नहीं मेंटेन की गई है ड्यूरिंग ड्राई पीरियड तो पीटीएच हार्मोन भी इनसेंसिटिव हो जाएगा. इवन पीटीएच हार्मोन भी एक्ट नहीं कर पाएगा इस टाइम पे. एंड समटाइम्स विटामिन D3 डेफिशिएंसी विल आल्सो बी देयर. तो ये फंक्शन जो है वो बोन से रिसॉर्प्शन आल्सो दिस विल नॉट हैपन. सो बोन रिसेप्टर भी रिस्पॉन्स डिलेड हो जाता है. समटाइम्स कैल्शियम जो है वो इवन कैल्शियम इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम द रिजर्व्स, देन आल्सो समटाइम्स इट बिकम्स इनसफिशिएंट. तो इसलिए होम्योस्टैसिस जो है वो रीच नहीं हो पाता, विच मीन्स कि कैल्शियम जो है वो अपने नॉर्मल लेवल्स तक नहीं पहुंच पाता है. देन न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन हो जाता है. कैल्शियम इज नीडेड फॉर द नर्व इम्पल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. कैल्शियम के मल्टीपल रोल्स हैं. ठीक है, कैल्शियम के मल्टीपल रोल्स होते हैं. तो इस न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शनिंग की वजह से उस टाइम पे पैरालिसिस हो जाता है. पैरालिसिस इज पैरालिसिस. देन स्मूथ और मसल कार्डिक मसल जो होते हैं वो एटोनी. बेसिकली कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो इसीलिए जीआईटी स्टैसिस हो जाता है. इवन जीआईटी दैट इज द इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डिक मसल, तो कार्डिक मसल भी इरेग्युलर हो जाती है. Then afterwards animal will become recumbent and then there will be shock and ultimately even death of the animal. Then next the clinical signs. तो stage 1 के cases में initially there might be excitement. ठीक है, मसल ट्रेमर्स हो सकते हैं, स्मॉल मस्कुलर ट्विचिंग हो सकती है कुछ पोर्शंस में, इनकोऑर्डिनेशन, एनोरेक्सिया होता है. देन स्टेज 2 होती है जब देयर इज स्टर्नल रिकम्बेंसी, एनिमल इज रिकम्बेंट एंड स्टर्नल रिकम्बेंसी होती है. डलनेस, डिप्रेशन, हेड इज टर्न टू द फ्लैंक, देन ड्राई मसल, डायलेटेड प्यूपिल्स, लॉस ऑफ एनल रिफ्लेक्स. देन स्टेज 3 में व्हेन देयर इज लेटरल रिकम्बेंसी, आफ्टर स्टर्नल रिकम्बेंसी एनिमल विल पोज द lateral recumbency, then there might be coma, no papillary reflex, subnormal temperature. Basically temperature starts going down, increased heart rate, steady pulse you will observe. Then even uterine prolapse, also retained placenta, these are all possible. Then tympani due to GIT stasis, and even bloat is also observed in the animals. Clinically what you will observe is serum calcium levels will go down. Okay, serum calcium levels will go down. लेस देन 5 mg पर डेसीलीटर हो जाए तो इवन कोमा हो जाता है. देन सीरम फॉस्फोरस विल ऑल्सो गो डाउन. देन सीरम मैग्नीशियम समटाइम्स नॉर्मल होगी या कभी कभी इंक्रीज भी हो सकता है, नॉर्मल होते हैं मोस्टली. देन ब्लड ग्लूकोज लेवल इट विल स्टार्टिंग में इंक्रीज हो जाता है, समटाइम्स इंक्रीज भी हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया स्ट्रेस की वजह से. देन SGOT, SGPT, सो धीरे धीरे मस्कुलर डैमेज होने लग जाता है, तो उस टाइम पे ये वैल्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगी. देन ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया, देन यूरिन में कोई स्पेसिफिक. देन सो डायग्नोसिस आपने कैसे डायग्नोस करना है? इनिशियली सबसे पहले तो आपने इसको प्रिवेंट ही करना है. ओके, इसको प्रिवेंट करना इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. ट्रीटमेंट मैनेजमेंट तो बात की बात है, इमीडिएट ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इसके केस में. तो डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? हर केस में आपको सबसे पहले तो जब भी डायग्नोस करनी है कोई भी डिजीज, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द एनिमल, दैट इज एनामनेसिस. तो हिस्ट्री से सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है. देन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल साइंस, ओके, सबसे पहले हिस्ट्री, देन क्लिनिकल साइंस, देन क्लिनिकल पैथोलॉजी. ओके, देन समटाइम्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस शुड ऑल्सो बी देयर. तो करेक्टरिस्टिक 3 स्टेज आपको क्लिनिकल प्रोग्रेशन इसमें मिलेगी. रीसेंट पार्चुरेशन आपको हिस्ट्री में मिल जाएगी.
देन सीरम कैल्शियम लेवल्स आपको कम मिल जाएंगे। देन रैपिड रिस्पॉन्स, जैसे ही आप आईवी ट्रीटमेंट करेंगे कैल्शियम थेरेपी से, एनिमल रिस्पॉन्स इमीडिएटली इसमें रिस्पॉन्स आ जाता है। एनिमल जैसे ही होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाएगा, कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, तो एनिमल एकदम से रिस्पॉन्ड करता है। बट ये जो है ये आपको इमीडिएटली उसी टाइम पे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करनी होगी, तब एनिमल विल स्टार्ट रिस्पॉन्सिंग। अदरवाइज क्या, डाउनर काउंट ये फर्दर जो है वो डाउनर काउ में चली जाती है। देन इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डाउनर काउ सिंड्रोम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा, बेसिकली डाउनर काउ सिंड्रोम इज द एडवांस्ड स्टेज, ठीक है, जब एनिमल जो है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता उसके बाद। देन ग्रास टेटनी, इसमें क्या होती है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है और मैग्नीशियम लेवल्स वेरी लो, एंड देन मैग्नीशियम थेरेपी पे एनिमल रिस्पॉन्स करता है। देन कीटोसिस जो होती है वो एसिटोनीमिया कीटोसिस, ये होती है ड्यूरिंग द हायर मिल्क प्रोडक्शन स्टेज। इवन इमीडिएटली आफ्टर पार्चुरेशन कीटोसिस आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। दैट इज आप ये कीटोसिस जो होती है वो जब पीक मिल्क यील्ड होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली मिल्क यील्ड इंक्रीज होती है, और जब वो पीक पहुंच जाती है उस टाइम पे आपको कीटोसिस मिलेगी एट 3 to 4 months। देन टीआरपी, एक्यूट टॉक्सीमिया भी होता है उसमें। एक्यूट टीआरपी में जो विदर पिंचिंग टेस्ट होता है उससे आप उसको डिफरेंशियली डायग्नोज कर सकते हैं। देन ऑब्चुरेटर पैरालिसिस, शैटिक नर्व पैरालिसिस, इसमें क्या होता है, इवन डाउनर काउ सिंड्रोम में भी शैटिक पैरालिसिस, ऑब्चुरेटर पैरालिसिस हो जाता है, तो उस टाइम पे डिस्ट्रोफिया की हिस्ट्री आपको इजीली मिल जाएगी। देन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है एनिमल को, स्लो आईवी देते हैं, एंड देन 1 ग्राम कैल्शियम पर 45 kg बॉडी वेट, एंड देन उसको इमीडिएटली उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन स्टर्नल रिकमेंसी, देन मॉनिटर, फिर उसको कम्प्लीटली एनिमल को मॉनिटर करना होता है। देन इफ नो इम्प्रूवमेंट 5 to 8 hours रिपीट करने। देन प्रिवेंशन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो विद होल्ड कर लेना चाहिए ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, एंड सेकेंडली ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, दैट इज इमीडिएटली बिफोर कार्विंग, एनिमल शुड बी प्रोवाइडेड immediately before calving, 3 to 4 weeks before calving, उस टाइम पे ammonium chloride and the ammonia the chloride and the sulfate that should be higher in the diets. Then vitamin D2 reserves should be there in the diet of the animal. Then second is post parturition hypophosphatemia or hemoglobinuria that we have discussed, also known as post parturition phosphorus deficiency, nutritional hemoglobinuria, downer cow, even in the chronic cases। downer cow के multiple causes होते हैं, ओके, डाउनर काउ के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, उसमें से एक जो है वो पीपीएच से भी हो जाता है। देन बेसिकली फॉस्फोरस भी लो होगा, मैग्नीशियम भी लो होगा, कैल्शियम लो होगा, देन इवन कोई पैरालिसिस हो गया है बॉडी में, देन नर्व डीजेनरेट हो गई है, या नर्व जो होती है उसमें नर्व ब्रेक डाउन हो गया है, तो उस सब की वजह से भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाती है। देन पैथोफिजियोलॉजी, लो डाइटरी फॉस्फोरस इनटेक एंड मैसिव phosphorus losses from the body. Then we have discussed this in much detail, phosphorus की पैथोफिजियोलॉजी, पीपीएच की पैथोफिजियोलॉजी। तो how it happens is that जब भी phosphorus जो होता है वो डाइट में लो होगा, hair grasses, low phosphorus areas में it will be mostly seen. Then massive phosphorus loss in the milk and colostrum. Then copper deficiency predisposes, and prolonged hypophosphatemia predisposing factor for intravascular hemolysis. देन पोस्ट पार्चुरेंट, इसमें क्लिनिकल साइंस क्या होंगे, ग्रेजुअल ऑनसेट वीकनेस होगी, देन रेड ब्राउन कलर यूरिन, हीमोग्लोबिन्यूरिया यू विल ऑब्जर्व, देन टैकीकार्डिया, देन डाउनर काउ इन टिपिकल मिल्क फीवर रिस्पॉन्स। देन क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको सीरम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के लेवल्स बहुत लो हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन विल बी लो, पीसीवी लो हो जाएगा, देन यूरिन में आपको रेड ब्राउन या हीमोग्लोबिन विल बी प्रेजेंट, देन घोस्ट आरबीसीज मिलेंगे आपको इन द ब्लड। देन डायग्नोसिस राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, 3 to 6 वीक पोस्ट कार्विंग, जैसे मैंने आपको बताया 3 to 6 वीक्स पोस्ट कार्विंग में ये मोस्टली ऑब्जर्व होता है। देन सीरम फॉस्फोरस लेवल्स विल बी वेरी लो। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जस्ट नाउ एज वी डिस्कस, मिल्क फीवर में कैल्शियम जो होता है वो लो होता है एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू कैल्शियम थेरेपी, एंड देन सेकेंडली हीमोग्लोबिनुरिया इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क फीवर। देन डाउनर काउ सिंड्रोम में हीमोग्लोबिनुरिया नहीं मिलेगा आपको, एजोटूरिया, टाइंग अप में भी मायोग्लोबिनुरिया बेसिकली यू विल ऑब्जर्व, नॉट हीमोग्लोबिनुरिया। एंड ये जो होता है एजोटूरिया बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ, इसमें क्या होता है एकदम से इमीडिएटली हिस्ट्री आपको ऐसे मिलेगी कि एनिमल जो होता है उसको आपने
रेस्ट करवा दिया था और एकदम से रेस्ट के अगले दिन आपने, मंडे मॉर्निंग सिकनेस इसको इसीलिए कहते हैं, एकदम से नेक्स्ट डे आपने उसको एक्सरसाइज में ले गए। हीमेचूरिया में हीमोग्लोबिन की जगह पे कंप्लीट आरबीसीज आपको मिलेंगे यूरिन में। देन लेप्टोस्पायरोसिस में भी अगेन इक्टेरिस उसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, फीवर एंड इक्टेरिस। देन इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज द इटियोलॉजिकल एजेंट लेप्टोस्पायरा, वो आपको इजीली मिल जाते हैं, ब्लड में भी मिल जाते हैं। देन ट्रीटमेंट, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है तो फॉस्फोरस नीड्स टू बी सप्लाइड टू द एनिमल, स्लो आईवी प्रोवाइड किया जाता है। देन इवन ओरल सप्लीमेंटेशन शुड बी देयर। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी इवन समटाइम्स इट इज प्रेजेंट अलोंगसाइड हाइपोकैल्सीमिया आल्सो, तो बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। Then vitamin D supplementation to enhance phosphorus absorption. Then basically prevention is better, तो ensure करना है dietary phosphorus adequacy. Then ketosis और pregnancy toxemia और acetonemia. So it is also known as postparturient dyspepsia, pregnancy toxemia, lambing sickness. तो twin lambs में ये ज़्यादा पाई जाती है. Then it is a metabolic disorder of high producing dairy cows and pregnant ewes characterized by negative energy balance, elevated ketone bodies. तो बॉडी में, ब्लड में एसेटोएसेटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसेटोन, दीज आर द कीटोन बॉडीज जो कि जिनके लेवल्स बिकम्स वेरी हाई. देन देयर इज आल्सो हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया. देन प्राइमरी रीजन क्या होता है, हैवीली फेड हाई यील्डिंग काउस ओवर फेटनिंग कर दिए जाते हैं एट काविंग. देन जब BCS जो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग जो होती है मोर देन 3.5, तो inadequate energy intake, early lactation. Then excessive in silage feeding, sometimes excessive silage feeding से भी कॉपर, कोबाल्ट, फॉस्फोरस, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होते हैं. कोबाल्ट इज एसेंशियल फॉर प्रोपियोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म. बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस is important. Gluconeogenesis से oxaloacetate is utilized and ketosis can be prevented. Then secondary reasons होते हैं, reduction in the appetite due to abomasal displacement, TRP, metritis, mastitis, fluorosis. So secondary reasons can also be there. In the case of ovine sheep, decline in nutrition last 2 months during pregnancy. Eves जो होते हैं more than 1 lamb, तो inclement weather. These are the characteristic features which will precipitate the disease. Then पोस्ट पीक प्रेवलेंस होता है 20 to 30 डेज पोस्ट काविंग. फोर्थ काविंग पीक में बेसिकली जब भी बॉडी के रिजर्व्स विल बी वेरी लो, उस टाइम पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है. फर्स्ट मंथ ऑफ लैक्टेशन मोस्ट कॉमन. नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है, फैट मोबिलाइजेशन इज इंक्रीज विच मीन्स कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इंक्रीज हो जाएगा एंड देन द कीटोजेनेसिस विल बी देयर. ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर्स इनसफिशिएंट होते हैं, इनएडिक्वेट ऑक्सैलोएसिटेट फॉर TCA साइकिल. अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सैलोएसिटेट दैट इज यूटिलाइज्ड इन द TCA साइकिल. तो ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर्स जब भी इनसफिशिएंट होंगी तो ऑक्सैलोएसिटेट प्रोडक्शन विल बी वेरी लो, इट विल नॉट बी फॉर्म, सो TCA साइकिल नहीं वर्क कर पाता. देन ब्यूटारेट रिच साइलेज जो है जस्ट नाउ एनसाइलेज की वजह से हमने देखा, तो ब्यूटारेट रिच साइलेज जो होता है डायरेक्ट कीटोन बॉडी में जा रही है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट दैट इज, तो इट विल प्रेसिपिटेट द डिजीज. देन हाई मिल्क प्रोडक्शन और लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे डिमांड्स विल बी वेरी हाई. ठीक है, डिमांड्स जब भी इंक्रीज हो जाएंगे तो ग्लूकोज जो होता है वो इनसफिशिएंट हो जाता है बॉडी में, तो देयर इज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस. नेगेटिव एनर्जी बैलेंस विच मीन्स कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा थी बट डिमांड ज़्यादा थी, बट जो है वो प्रोवाइड नहीं है, उतनी रिजर्व्स नहीं है बॉडी में. तो उस टाइम पे क्या होता है, नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड जो है वो स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग फ्रॉम द एडिपोस और द फैटी टिश्यू. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इंक्रीज हो जाता है, TCA की कैपेसिटी एक्सीड कर जाता है. TCA में एसिटाइल कोएंजाइम ए इज आल्सो रिक्वायर्ड अलोंगसाइड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सो इट विल बी डाइवर्टेड टू कीटोजेनेसिस. तो ये जो एक्सेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये जो है वो कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाएगा. So there will be increased ketone bodies, acetoacetate, beta hydroxybutyrate and then the acetone. Hypoglycemia, continuously hypoglycemia हो रही है and then the ketone bodies are also producing. तो इसको बोलते हैं कीटोनीमिया या कीटोनीमिया, यानी कि कीटोन बॉडीज इन द ब्लड. देन इट विल लीड टू कीटोनूरिया, बेसिकली कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. इसकी वजह से क्या होता है, CNS साइंस, क्योंकि ऑल द CNS साइंस सर्कलिंग एटसेट्रा ऑल दी स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग एंड देन द डेथ. समटाइम इवन in extreme cases there will be death also. Then the clinical signs starting from the wasting form. Wasting form में there is gradual reduction in the appetite. Animals जो होते हैं वो first grains को refuse करेंगे and then उस टाइम पे hay eat करेंगे and later on they will also
उसको हे को भी दे विल रिफ्यूज. Inappetence, then anorexia will develop. Rapid weight loss, woody appearance of the body, loss of subcut fat and the elasticity. Then nervous form होती है जब walking in circles, head pressing, CNS signs आएंगे, apparent blindness, aimless wandering. Then moderate depression, disinclined to move. Then ketone smell from the, because ketonuria है, okay, तो ketone bodies की वजह से तो fruity odor, ketone smell आएगी. Staggering, partial blindness. ओवाइन में apparent blindness होती है, head pressing, teeth grinding. Then clinical pathology, blood glucose level बहुत low हो जाते हैं. Then उसके बाद यूरिन में कीटोन बॉडीज यू विल फाइंड. देन मिल्क में भी आपको मिल जाएगा. द वॉलेटाइल फैटी एसिड जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. लिवर में ग्लाइकोजन रिजर्व्स विल बी वेरी लो. देन रोथेराज नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किया जाता है. देन डायग्नोसिस बेसिकली राइट फ्रॉम द हिस्ट्री. देन क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ओके. देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस. मिल्क फीवर में अभी हमने पढ़ा कीटोन बॉडीज नहीं होते. लिस्टीरियोसिस में भी नर्वस साइंस आपको मिल जाएंगे बट उसमें कीटोनूरिया नहीं मिलेगा. देन एबोमिजल डिस्प्लेसमेंट, उसमें पिंक साउंड आपको मिलेगी ऑस्कल्टेशन के टाइम पे. देन टीआरपी अगेन विदर पिंच टेस्ट करते हैं उसमें. देन रेबीज में बेसिकली कीटोन बॉडीज नहीं मिलेंगी. एंड देन प्रोग्रेसिव पैरालिसिस आपको मिलेगा. तो ट्रीटमेंट सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोपाइलिन ग्लाइकोल उसको ओरल ड्रेंचिंग की जाती है. देन ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन ये भी प्रोवाइड करते हैं. सोडियम प्रोपियोनेट, विटामिन B12 एंड कोबाल्ट, क्योंकि ये कोएंजाइम प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव कोएंजाइम प्रोवाइड करता है. देन फ्लोरल हाइड्रेट ऑल्सो फॉर द, फ्लोरल हाइड्रेट के दो रोल हैं बेसिकली, नर्वस साइंस को भी कंट्रोल करने के लिए एंड सेकेंड प्रोपियोनेट प्रोडक्शन के लिए. देन उसके बाद आता है ग्रास टेक्नी, दैट इज हाइपोमैग्नीसियमिक टेक्नी. हमने मैग्नीशियम के टाइम पे भी इसको पढ़ा था. सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रास टैगल्स, लैक्टेशन टेक्नी, हाइपोमैग्नीसियमिक टेक्नी, विंटर टेक्नी, व्हीट पास्चर पॉइजनिंग. So it is acute disease, often fatal, metabolic disorder of lactating dairy cows, which is characterized by low levels of magnesium. इससे हाइपर एक्साइटेबिलिटी होंगी, टेटानिक कन्वर्जन्स होंगे एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. The plasma magnesium levels will be very low, less than 1 mg per deciliter. Then grazing lush green pasture, autumn pasture, because these are potassium rich, तो magnesium की absorption लो हो जाती है. Even after fertilizer application, potassium nitrate fertilizer, तो वहाँ पे भी magnesium की absorption becomes very low. Then cold inclement weather उस टाइम पे ज़्यादा होती है. Then warm load, hemonchus, उस टाइम पे भी magnesium absorption becomes very low. तो लो डाइटरी मैग्नीशियम या पोटेशियम अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लाज्मा मैग्नीशियम विल बी वेरी लो. देन CSF मैग्नीशियम अगेन फॉल्स. देन सोडियम पोटेशियम ATPase फंक्शन विल बी लो. न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी विल इंक्रीज. देन स्पॉन्टेनियस मसल फायरिंग, टेटानिक कन्वर्जन विल बी देयर, इंटेंस सीजर्स. देन डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. क्लिनिकल साइंस में पर एक्यूट केसेस में सडन कोलैप्स हो जाएगा, वॉलेंट कन्वर्जन एंड देन डेथ. देन एक्यूट केसेस में हाइपरेस्थीसिया, स्लाइड डिस्टर्बेंस होगी. Then continuous bellowing, frenzied galloping, then staggering gait, then champing of jaws, क्योंकि टेटानिक कन्वर्जन्स है तो इट विल तो सिम्टम्स जो है वो टेटनस की तरह होंगे. देन टेम्परेचर जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. देन उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो सबसे पहले आपको सिरम में मैग्नीशियम लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो बहुत लो हो जाएंगे. CSF के लेवल्स बहुत लो हो जाएंगे. देन क्योंकि कन्वर्जन्स हो रहे हैं तो SGOT लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. डायग्नोसिस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री लश ग्रीन पास्चर आपने प्रोवाइड किया गया होगा. देन क्लिनिकल पैथोलॉजी से आप उसको चेक कर सकते हैं. देन इट विल रिस्पॉन्ड टू मैग्नीशियम थेरेपी. सो मिल्क फीवर में अगेन टेटनी नहीं होती, अदरवाइज उसमें रिकम्बेंसी इज द मोस्ट कॉमन फीचर. देन एक्यूट लेड पॉइजनिंग में ब्लाइंडनेस होगी, हिस्ट्री ऑफ लेड एक्सेस होगा. देन टेटनस में आपको प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आईलिड देखने को मिलता है. देन पास्चर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. रेबीज में अगेन टेटनस नहीं होता, बेसिकली पैरालिसिस इज द केस. स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में भी हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग आपको देखने को मिलेगी. देन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट अगेन मैग्नीशियम सल्फेट प्रोवाइड करना है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के साथ. देन कैल्शियम मैग्नीशियम प्रिपरेशन ओरली भी प्रोवाइड कर सकते हैं. देन बेसिकली प्रिवेंशन शुड बी देयर, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन, मैग्नीशियम बुलेट्स, देन पास्चर विद मैग्नीशियम सल्फेट. नेक्स्ट इज रूमिनल एसिडोसिस. रूमिनल एसिडोसिस समटाइम्स हाई कंसनट्रेट फीड कर दिया जाता है टू द एनिमल, देन ऑल्सो इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, उस टाइम पे भी ये कॉमन हो जाता है. देन इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेन ओवरलोड, ग्रेन पॉइजनिंग, एक्यूट इंडाइजेशन, लैक्टिक एसिडोसिस,
carbohydrate engorgement or ruminal lactic acidosis. So basically it is a metabolic disorder caused by ingestion of excessive rapidly fermentable carbohydrates, which leads to accumulation of lactic acid in the rumen, fall in the rumen pH, systemic acidosis and dehydration. So what are the basic etiological and predisposing factors? Because of ingestion of unaccustomed rapidly fermentable carbohydrates. एकदम से rapidly fermentable carbohydrate अगर एनिमल को प्रोवाइड कर देंगे, so it will lead to एकदम से reduce हो जाएगी pH. Okay, एकदम से pH reduce हो जाएगी and then fermentation will be very high. तो अगर एकदम से pH reduce हो जाती है एंड fermentation हो जाती है, तो lactic acid जो है वो accumulate हो जाता है. volatile fatty acids में lactic acid will start predominating, and ये तब भी होता है जब भी streptococcus होता है. स्ट्रेप्टोकोकस जब प्रीडोमिनेंट होता है इन द रूमन माइक्रोब्स, उस टाइम पे भी ये आपको ज़्यादा ऑब्जर्व देखने को मिलेंगे. ठीक है, इंजेक्शन ऑफ अनअकस्टम, देन ओवर ईटिंग ऑफ ग्रेन, व्हीट, कॉर्न, बार्ली, बेसिकली जो कंसनट्रेट है उसकी फीडिंग जब ज़्यादा हो जाती है. देन स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, एज आई मेंशन, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जब ज़्यादा हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है बेसिकली. सो इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. ठीक है, फर्मेंटेशन वेरी हाई. देन एक्यूट पीएच में 5.2 हो जाती है. एक्यूट केसेस में पीएच जो है वो लेस देन 5.2 हो जाती है. सब एक्यूट में, दैट इज ऑल्सो नोन एज सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, उसमें 5.5 से 5.1 रहती है, एंड क्रोनिक के केसेस में 5.6. देन रिड्यूस्ड फाइबर भी डाइट में कम हो जाता है, तो रूमिनेशन कम हो जाएगा. बेसिकली फाइबर कम होगा तो एसिटेट प्रोडक्शन विल बी लोअर एंड प्रोपिनेट विल इंक्रीज. सलाइवरी बफर हो जाता है. देन पैथोफिजियोलॉजी, एक्सेस फॉर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा होंगे तो रैपिड प्रोलिफरेशन हो जाएगी, लैक्टिक एसिड विल बी वेरी हाई. देन रूमन पीएच जो होती है 6.8 से 5.2, रैपिडली इट विल फॉल डाउन. देन द ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज, फ्लूइड विल शिफ्ट फ्रॉम ब्लड. रूमन फ्लूइड जो होता है वो फ्रॉम द रूमन वो ब्लड में चला जाएगा, एंड देन देयर विल बी डिहाइड्रेशन. देन लैक्टिक एसिड विल बी एब्जॉर्ब्ड. लैक्टिक एसिड फ्रॉम द रूमन विल स्टार्ट गेटिंग एब्जॉर्ब. तो सिस्टेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाती है. तो जैसे ही सिस्टेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो अलग अलग ऑर्गन्स में भी इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग. देन रूमन वॉल में डैमेज हो जाता है, रूमेनाइटिस. देन लिवर में जाके भी एब्सेसिस बन जाते हैं. देन ऑल्सो लेमिनाइटिस विल ऑल्सो अकर. तो लेमनेस भी आ जाती है इसमें. देन सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है क्रोनिक केसेस में, लेमिनाइटिस, एंड इवन एक्यूट केसेस में डेथ विल अकर. देन एक्यूट केसेस में सडन ऑनसेट होगा 4 to 6 hours आफ्टर इंजेक्शन, सिवियर डिप्रेशन, वीकनेस एंड अटैक्सिया, एनोरेक्सिया विल बी देयर. देन टीथ ग्राइंडिंग, रूमिनल एटोनी विल डेवलप. ओके, देन ऑक्यूलर चेंजेस. सब एक्यूट केसेस में फीड इनटेक विल बी लो, मिल्क फैट जो होता है वो भी लो हो जाता है. क्रोनिक केसेस में पुअर बॉडी कंडीशन, लिवर एब्सेसिस विल बी देयर. जैसे हमने क्लिनिकल पैथोलॉजी अभी देखी, रूमन पीएच जो होता है एक्यूट केसेस में 5.2 से लो चला जाता है, सब एक्यूट में 5.5 से 5.1, नॉर्मल में 6.2 से, बेसिकली नॉर्मल में अराउंड न्यूट्रल पीएच होनी चाहिए. ब्लड की पीएच भी लो चली जाती है, 7.35 से लो चली जाती है. देन ब्लड में बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी लो हो जाता है, बिकॉज क्योंकि एसिडोसिस हो जाती है. पीसीवी इंक्रीज हो जाता है. जो भी साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के, पीसीवी इंक्रीज हो जाते हैं. सो क्लिनिकल पैथोलॉजी विल बी सिमिलर. देन डायग्नोसिस अगेन राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, recent एक्सेस टू ग्रेन, सडन चेंज इन द डाइट. द रूमन पीएच में आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी देखने को मिलेगा. देन रूमेनोटमी हो जाती है. रूमेनोटमी करनी पड़ती है इन सीवियर केसेस, अदरवाइज क्योंकि इसको चेंज करने के लिए रूमेनोटमी इन वेरी सीवियर केसेस बेसिकली इसको बाय ओरल ड्रेंचिंग चेंज कर दिया जाता है. देन ब्लोट में सिर्फ गैस एक्यूमुलेशन होगी, रूमन पीएच विल बी नॉर्मल. एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट में पिंक साउंड मिलेगी, कीटोसिस मिलेगी सेकेंडरी केसेस में. टीआरपी अगेन विद पिंच टेस्ट. एंटेरोटॉक्सीमिया में पर एक्यूट डेथ हो जाती है, रूमन में चेंज नहीं होता है. देन एंटेरोटॉक्सीमिया बेसिकली क्लोस्ट्रीडिया की वजह से होता है. देन ग्रास टेक्नी में अगेन मैग्नीशियम लेवल्स विल बी लोअर. तो रूमन को चेंज किया जाता है इन सिवियर केसेस, रूमन के कंटेंट्स को चेंज किया जाता है. बेसिकली रूमन लवाज, स्टमक ट्यूब, ओरल ड्रेंचिंग इज द सॉल्यूशन. सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिकली क्योंकि एसिडोसिस हो गई है तो वी विल सप्लाई द अल्कलाइन मटेरियल, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. इवन IV फ्लूइड्स, बिकॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ऑल्सो देयर. देन एंटीहिस्टामिन्स, रूमन ट्रांसफॉर्मेशन, रूमिनल कंटेंट्स हेल्दी काउ से प्रोवाइड किए जाते हैं.
Then prevention is better. Proper diet transition करनी चाहिए. Monensin, rumen buffers and adequate roughage should be provided. Then downer cow syndrome, it is also known as creeper cow. Then ischemic myopathy syndrome. So downer is basically a cow which is unable to rise after 24 hours despite two calcium treatments. Usually it is a complicated hypocalcemic parturient paresis characterized by prolonged recumbency, normal mentation and absence of metabolic causes. मोस्ट कॉमन है ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिलेड इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क फीवर. जब 4 आवर्स या डिलेड ट्रीटमेंट से क्या होता है, इस्चीमिक नेक्रोसिस हो जाती है. फिर एनिमल जो होता है वो रिकमेंट रह जाता है, डाउनर का, फिर वो उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता. वेन एवर देर इज ट्रॉमेटिक इंजरी टू मसल्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डिस्टोकिया के केसेस में ऑब्टुरेटर नर्व पैरालिसिस हो जाता है, उस टाइम पे भी ये ऑब्जर्व की जाती है. देन नर्व इंजरीज जैसे शैटिक, ऑब्टुरेटर, रेडियल और पेरोनियल नर्व्स, जब ये नर्व में इंजरीज हो जाती है प्रोलॉन्ग रिकम्बेंसी की वजह से या डिस्टोकिया की वजह से, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से, वेन एवर देर विल बी persistent hypophosphatemia, hypokalemia, then also it will result in creeper cow condition. In the case of toxemia, per acute mastitis, acute peritonitis, then uterine rupture, then also it is observed. Insufficient calcium treatment is causing ischemic necrosis of muscles. Then malnutrition, overfat, slippery floors, epidural anesthesia, then myocarditis. So there are multiple predisposing factors are responsible for causing downer cow syndrome. So there will be prolonged recumbency of more than 4 hours from milk fever or dystocia. The body weight starts compressing the muscles. So there will be ischemia. Okay, muscular ischemia. So blood supply will reduce and oxygen supply will reduce. So there will be necrosis. Ischemic necrosis will develop especially in the hind quarter muscles. So there will be potassium loss from necrotic muscles, SGOT and creatinine kinase will increase. जब भी मस्कुलर डैमेज होता है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं मसल से, तो ब्लड में ये एंजाइम्स आपको एलिवेटेड लेवल्स में दिखेंगे. देन नर्व कंप्रेशन, शैटिक ऑब्टुरेटर नर्व कंप्रेस हो जाती है, देन इट विल लीड टू पैरालिसिस. even after calcium restores the neuromuscular function, मस्कुलर डैमेज हो चुका है इसलिए एनिमल जो है वो कम्प्लीटली रिकम्बेंट ही रहता है. परमानेंट रिकम्बेंसी, प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज नकलिंग ग्रेड ऑफ मसल डैमेज. तो इसमें क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स इवन डीक्यूबिटस अल्सर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, एंड समटाइम्स देर इज सिस्टेमिक साइंस भी ऑब्जर्व देखने को मिलेंगे आपको, एंड समटाइम्स अल्टीमेटली डेथ ऑफ द एनिमल्स विल बी देयर अगर सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है. अदरवाइज इनिशियल स्टेजेस में एनिमल विल बी अलर्ट एंड ब्राइट, ईट्स एंड ड्रिंक्स मॉडरेटली, नॉर्मल टेम्परेचर, हार्ट रेट आपको मिलेगा. देन क्रीपर काउ अलर्ट, सपोर्ट्स ऑन फोर क्वार्टर्स बट कैन नॉट यूज द हाइंड क्वार्टर्स. देन हॉपिंग गेट भी मिलता है इनिशियली. देन सीरम कैल्शियम लेवल में भी नॉर्मल, आफ्टर ट्रीटमेंट या लो मिलेंगे. AST SGOT आपको इंक्रीज मिलेगा सीरम. मायोपैथी, क्योंकि मायोपैथी का मार्कर है क्रिएटिनिन काइनेज, तो वो आपको एलिवेटेड मिलेगा. फॉस्फोरस भी लो हो जाता है, पोटेशियम इज ऑल्सो लो. पोस्टमार्टम में मसल ऑलरेडी पेल मिलेंगी, नेक्रोसिस मिलेंगी. यूरिन एनालिसिस में मायोग्लोबिनूरिया बिकॉज मस्कुलर डैमेज. देन हिस्ट्री में आपको सो डायग्नोसिस राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, देन क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल साइंस, देन उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस. मिल्क फीवर स्टेज 3, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे भी एनिमल इज रिकम्बेंट बट इट इज कोमाटोज एंड कैल्शियम की इट विल रिस्पॉन्ड टू कैल्शियम थेरेपी. देन वेन एवर देर विल बी एक्यूट मेस्टाइटिस, टॉक्सीमिया, उस टाइम पे पेनफुल अडर होगा, सिस्टेमिक टॉक्सीमिया डेवलप हो जाएगा. TRP अगेन विद अ पिंच टेस्ट, TRP में विद अ पिंच टेस्ट होगी. देन रूमन स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के टाइम पे अगेन ट्रॉमा का हिस्ट्री होगी. हाइपोफॉस्फेटेमिया में फॉस्फोरस लेवल्स विल बी लोअर. देन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट अगेन सिंपल, इसकी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली आप इसको मैनेज करना बिकम्स इम्पॉर्टेंट. फिजियोथेरेपी के थ्रू, जेंटल लिम्ब मैनिपुलेशन, हाइड्रोथेरेपी. देन कॉन्करेंट डिजीजेज, इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे डिजीजेज हैं तो उसको ट्रीट करना इज इम्पॉर्टेंट. देन नर्सिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल, अदरवाइज डिक्यूबिटस अल्सर्स विल डेवलप. सो पैडेड फ्लोरिंग, टर्न काउ एवरी 4 to 6 hours. Then fatty liver syndrome or the fat cow syndrome, also known as hepatic lipidosis or the hepatic steatosis. So it is a metabolic disorder of high producing dairy cows occurring around calving, caused by negative energy balance leading to excessive non-esterified fatty acid mobilization from the adipose tissue and accumulation of triglycerides and hepatocytes, causing liver dysfunction. So the factors which are caused
which lead to the occurrence of fatty liver syndrome is that over conditioning of cows at calving, when the BCS will be more than 3.5 or even 5. Then abrupt fall in dry matter intake after prepartum period, because it will result in sudden negative energy balance. Then onset of lactation, peak energy demand will be very high, so body fat starts mobilizing. High blood non-esterified fatty acid will get esterified in the liver, then fatty infiltration will result. Then insulin resistance may develop because of leading to impaired fatty acid oxidation and reduced VLDL exported from the blood. Alongside, several diseases will also occur: ketosis, metritis, mastitis, milk fever, and they will worsen the condition. Then selenium, vitamin E deficiency also, because of poor antioxidant defense, hepatocellular damage. Excess body fat will reduce the appetite, and this is a vicious cycle for fat mobilization. Pathophysiology, because of overconditioning of the whenever the BCS will be more than 3.5 during the dry period. Then the feed intake around calving will be very low, so there will be development of negative energy balance. So the non-esterified fatty acid starts mobilizing from the adipose tissue through lipolysis. Liver becomes overwhelmed, and the triglycerides, TG means triglycerides, starts accumulating in the hepatocytes. Then hepatocyte function will reduce, gluconeogenesis will reduce, then urea synthesis and immune proteins, again everything will reduce because the hepatocytic function gets impaired. Then alongside concurrent ketosis, whenever the ketone bodies will be present, immune suppression will be there, and then it will be susceptible to infectious diseases. Liver failure will result, causing jaundice, encephalopathy, and even death in extreme cases. Clinical signs: okay, there will be reduced appetite and milk production will be high. Then lethargy, even the milk production will start reducing. Then lethargy, weakness, depression, jaundice, icterus in severe cases. Then concurrent diseases, very common, like ketosis, milk fever, retained placenta. Increased susceptibility to infections, hepatic encephalopathy will be there. Even the sudden death will be there in very peracute cases. Clinical pathology: non-esterified fatty acids will be increased in the blood. Serum levels of non-esterified fatty acids will increase. SGOT, ASD, again they will increase. This indicates that there is hepatocellular damage, because the hepatocytes starts accumulating the triglycerides, so they will get damaged, and they will show the disease because of release of SGOT and AST. Then even GGT, gamma glutamic. So this is very important marker for the bile duct involvement. You must have read this in your medicine class. So GGT is a very important indicator of bile duct involvement. Whenever there will be impairment in the bile duct, so GGT will get elevated. Then BUN also, because urea cycle is impaired. The liver function is basically impaired. So all the clinical pathology will indicate the impaired liver function. So diagnosis, because based on history, overconditioned cow, post-calving, concurrent production diseases. Liver biopsy will show. Liver biopsy is basically the gold standard test to diagnose the non-esterified fatty acid and the fatty liver syndrome. Then blood biochemistry, as just now we discussed. Then primary ketosis में there will not be any liver failure and the ketone bodies will be present. Hepatic abscess में आपको neutrophilia मिलेगा, because abscess will be there. Then TRP with hepatic involvement, तो TRP में wither pinch test आपको मिल जाएगा. Then hypocalcemia में calcium will be low. Pregnancy toxemia में it is during the late pregnancy time. तो treatment कैसे की जाती है? सबसे पहले तो glucose levels need to be restored. तो IV glucose levels, then propylene glycol, then even niacin is provided because it reduces the non-esterified fatty acid mobilization. Then choline also, because it is lipotropic. So phospholipid export from the liver, so VLDL it will promote synthesis. And vitamin E and selenium very important for the protection of the antioxidant protection of hepatocytes. Basically it will protect from the free radical damage in the hepatocytes. Anabolic steroids, trenbolone acetate, these are also provided. Next is the bloat or the ruminal tympani. Okay, bloat, ruminal tympani, you must have studied this in your medicine class. So ruminal tympani, so again pasture bloat, frothy bloat. Frothy bloat कब develop होता है? जैसे मैंने आपको legume feeding बताई थी, उस टाइम पे उसकी वजह से frothy bloat होता है, legume feeding की वजह से.
Accumulation of excessive gas is that is carbon, basically इरेक्टेशन फेलियर हो जाता है तो उस टाइम पे accumulate हो जाएगा रूमन में, causing distension of the rumen, dorsal sac dilation, then respiratory cardiovascular function gets compromised. Frothy bloat because of grazing legume pasture, leucine, alfalfa, clover, soybeans, proteins, saponins, basically तो soap forming properties हो जाती है, तो frothiness हो जाती है, तो gas will get trapped. Then frothy bloat, finely ground, concentrate, rapidly fermentable, free gas bloat, that is second. Obstruction of cardia because eructation is reduced. Eructation नहीं हो पाती. Then vagal indigestion, esophageal obstruction के cases में भी आपको ये मिल जाएगा. Secondary to TRP, sometimes because of TRP also bloat is developed. Hypomesal displacement recumbency, grain overload, that is जो अभी हमने पढ़ा acidosis. Then young calves में drinking milk from bucket, aerophagia, heterogenic. Then high risk period, wet lush spring pastures जिसमें क्लवर जो होता है फ्रॉस्ट कवर्ड क्लवर, तो उसमें कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है. देन इंजेक्शन ऑफ ब्लोट प्रोड्यूसिंग फीड्स, दैट इज जो अभी हमने लेग्यूम पास्चर्स वो सब पढ़ा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डिया, गैस प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, इरेक्टेशन मैकेनिज्म इज ब्लॉक्ड. देन फ्रॉदी गैस स्टार्ट ट्रैपिंग, तो स्टेबल फोम फॉर्मेशन हो जाती है इन रूमन डॉर्सल सैक, या समटाइम्स फ्री गैस ऑल्सो गेट्स एक्यूमुलेटेड, तो रूमन डिस्टेंड हो जाता है, डायफ्राम कंप्रेस होती है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विल ऑल्सो बी देयर. इंट्रारूमिनल प्रेशर इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, एंड द पोर्टल प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो वीनस रिटर्न नहीं हो पाता, तो इवन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन ऑल्सो गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. बेसिकली तो रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक फंक्शन दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो एस्फिक्सिया, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाते हैं, इवन डेथ हो जाती है इन अनट्रीटेड केसेस. देन सडन डिस्टेंशन, क्लिनिकल साइंस में आपको मिलेगा सडन डिस्टेंशन, ड्रम लाइक परकशन आपको इजीली ऑब्जर्व करने को मिलेगा एट द लेफ्ट पैरालम्बर फोसा. देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओपन माउथ ब्रीदिंग, प्रोट्रूजन, किकिंग एट एब्डोमेन. सो बेसिकली ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि एनिमल इज इन डिस्ट्रेस. वीनस कंजेशन, जुगुलर डिस्टेंशन, इवन जुगुलर डिस्टेंशन हो जाती है. देन एनिमल स्टैंड्स विद 4 legs elevated, डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया. देन क्लिनिकल पैथोलॉजी में डायग्नोसिस, सबसे पहले तो आपको ब्लड पीएच विल बी रिड्यूस्ड इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस केसेस, पीसीवी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ब्लड गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, ऑक्सीजन विल रिड्यूस. रेस्पिरेटरी फेलियर इंडिकेट कर रहा है. रूमन गैस की कंपोजिशन हाई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, स्टमक ट्यूब पास करते हैं तो गैस रिलीज होती है इमीडिएटली. देन डायग्नोसिस राइट फ्रॉम द हिस्ट्री. देन क्लिनिकल पैथोलॉजी, स्टमक ट्यूब टेस्ट. देन परकशन में आपको टिम्पैनिक रेजोनेंस मिलेगी एंटायर लेफ्ट फ्लैंक एरिया में. देन ट्रॉमेटिक टीआरपी में आपको पेन ऑन विदर, समटाइम्स फीवर विल ऑल्सो बी देयर. देन एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट में आपको पिंग मिलेगी. रूमिनल एसिडोसिस, सेकेंडरी ब्लोट, रूमिनल एसिडोसिस जो है वो ब्लोट का सेकेंडरी रिजल्ट होता है. देन एलडीए, पिंग ऑन द लेफ्ट कोस्ट, एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट का ही सेकेंड फॉर्म है ये एलडीए. देन डायफ्रामेटिक हर्निया में डीएच में आपको डिस्निया मिल जाता है. देन इमरजेंसी ट्रीटमेंट, आपको एकदम से ट्रोकार एंड कैनुला पास करना चाहिए. देन फ्रॉदी ब्लोट में पोलोजैलिन, एंटी फॉर्मिंग एजेंट प्रोवाइड करना चाहिए एनिमल को. रूमेनोटमी बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉदी ब्लोट में स्पेशली, या जब भी ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर या टीआरपी होती है उस टाइम पे भी. देन लेमिनाइटिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर. बेसिकली ये जो है वो एसिडोसिस, रूमिनल एसिडोसिस का एक सीक्वली है, तो ऑल्सो नोन एज पोडोडर्मेटाइटिस एसेप्टिका, सब क्लिनिकल लेमिनाइटिस क्रोनिक फॉर्म. देन इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेंसिटिव लेमिना ऑफ द हूफ और कोरियम. तो बेसिकली ये प्रोडक्शन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए है बिकॉज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ग्रेन ओवरलोड. So excess rapidly fermentable, the complete physiology, pathophysiology will be completely similar to the जो हमने अभी रूमिनल एसिडोसिस पढ़ी थी. तो रूमिनल एसिडोसिस से बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, lipopolysaccharide will gain access and then it will cause a vasomotor disturbance in the digits. Metritis, mastitis या retained placenta, ROP, retention of placenta, उस टाइम पे भी systemic signs you will observe, endotoxemia की वजह से, then grain overload की वजह से. Then again pathophysiology, grain overload, endotoxemia, systemic disease, जो भी इसका primary cause है उसकी वजह से. Histamine will increase, endotoxin, vasoactive amines bloodstream में increase हो जाएंगे. Then arteriovenous shunting of the digital vessels will be there. Then ischemia, then inflammation of the corium. Then again similarly laminitis will develop, and then the horn quality degrades, and in the chronic cases the
स्लिपर फुट एंड द वाइट लाइन डिजीज विल डेवलप. क्लिनिकल साइंस में सडन सीवियर लेमनेस होगी, रिलक्टेंस टू वॉक, animal will start shifting its body weight from one hoof to another, then heat and pain in hoofs, basically classical signs of inflammation you will observe. Stiffness, sawdust walking, then fever, chronic cases में yellow pink discoloration, hemorrhages होंगे, sole ulcers, ulcer develop हो जाएगा, slipper foot, corkscrew claw will develop. Then clinical pathology में कोई पैथोग्नोमिक साइंस नहीं मिलेंगे, बट बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी कंडीशन किसकी वजह से ये डिजीज हो रही है तो वो आपको देखने को मिलेगा. ब्लड में एंडोटॉक्सिन, सिस्टेमिक लेमिनाइटिस की वजह से. देन WBCs इंक्रीज हो जाते हैं इन सेवरल सीवियर केसेस. क्लिनिकल साइंस और हिस्ट्री के बेसिस पे एंड देन द क्लिनिकल साइंस बेसिकली आपको क्लिनिकल साइंस के केसेस में आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं बेटर. फिर रेडियोग्राफी कर सकते हैं आप थर्ड फेलेंक्स की. देन फुट रॉट, समटाइम्स नाइक्रोबैसिलोसिस की वजह से फुट रॉट हो जाती है तो उसमें आपको प्यूट्रिड ओडर मिलेगी. देन डिजिटल डर्मेटाइटिस, स्ट्रॉबेरी लाइक लीजन मिल जाएंगे, सोल एप्सिस, वहाँ पे पस डेवलप हो जाती है. देन ग्रास टेटनी में तो आपको मसल ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे मैग्नीशियम की वजह से. आर्थराइटिस में जॉइंट्स स्वोलन हो जाते हैं. देन प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली डाइटरी कॉज को आपको रिमूव करना होगा. इफ इट इज बिकॉज ऑफ रुमिनल एसिडोसिस तो कंसंट्रेट फीडिंग कम करनी होगी एंड रफेज प्रोवाइड करना होगा. अदरवाइज इसके बेसिकली मैनेजमेंट ही आप इसकी कर सकते हैं. देन एनएसएड्स बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है फिनाइल ब्यूटाजोन हॉर्सेस में, फ्लूनिजीन, मेग्लूनामाइड. देन एंटीहिस्टामीन्स, हूफ ट्रिमिंग, बेसिकली आप इसको मैनेज ही कर सकते हैं थ्रू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. Then displacement, LDA or RDA, that is right displacement of abomasum और left displacement of abomasum. तो इसको abomasum volvulus भी कहते हैं. इसमें torsion भी हो जाता है कभी कभी. So displacement of the gas filled abomasum from its normal position, right ventral abdomen. Basically normal position is ventral position, right में ventral position में होता है. तो ये उसकी instead of that it will get displaced to the left side sometimes causing LDA and even right side RDA. टॉर्जन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इसके केसेस में. whenever there will be hypocalcemia, reduced calcium, तो एबोमेजल स्मूथ मसल की टोन जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो there will be atony. Then gas starts accumulating inside the abomasum and it will cause displacement. In the case of negative energy balance, कीटोसिस के साथ आपको ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर. बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेट डाइट ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड, इंक्रीज्ड वॉलेटाइल फैटी एसिड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड गैस. वॉलेटाइल फैटी एसिड प्रोडक्शन की वजह से भी एबोमेजल एटोनी हो जाती है. फर्स्ट 6 वीक्स में आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है. मोस्टली कीटोसिस में उसी टाइम पे होता है. ओवर कंडीशन काउज में सडन ड्रॉप इन ड्राई मैटर इनटेक, वो उसकी वजह से ये डिजीज जो है वो प्रीडिस्पोज होती है. मोस्टली आपको LDA ही आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादातर देखने को मिलती है. देन कैल्शियम जब भी कम हो जाएगा या एनर्जी कम हो जाएगी, एबोमेजल एटोनी हो जाएगी इसकी वजह से. गैस विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, बेसिकली अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो गैस विल गेट एलिमिनेटेड. अदरवाइज अगर एनिमल जो है वो उसका एबोमेजम एटोनी हो गई है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गई है, तो गैस उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है. तो गैस फिल्ड एबोमेजम जो है वो बॉइंट हो जाएगी, उसमें बॉइंसी फोर्स आ जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. डिस्प्लेसेस लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड. LDA trapped between rumen and left body wall. Gas cannot escape out. Pyloric outflow is obstructed and increased fluid या HCl accumulation, metabolic alkalosis. RDA में volvulus sometimes also develop, so mesenteric torsion will be there, ischemia, endotoxemia. And LDA में chronic ketosis, RDA volvulus, rapid shock and even death. तो क्लिनिकल साइंस LDA में ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है, मिल्क यील्ड कम हो जाएगी, एपेटाइट आपकी रिड्यूस हो जाएगी एनिमल की, एंड रिकरेंट कीटोसिस के साइंस मिलेंगे. LDA में लेफ्ट फ्लैंक में आपको एबोमेजम मिल जाएगा. तो करेक्टरिस्टिक मेटालिक पिंक साउंड आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी आफ्टर परकशन एंड ऑस्कल्टेशन एट 7th and 12th रिब. देन रूमन की मोटिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड. फीसेस जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं एंड डिहाइड्रेशन विल ऑल्सो बी देयर. देन क्योंकि इसके साथ कीटोन बॉडीज, कीटोसिस भी इसका कॉन्करेंट इसके साथ होता है, तो आपको उसके साइंस भी साथ में मिलेंगे. कीटोन ऑर्डर, रोथेराज नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट विल बी पॉजिटिव. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगी, हाइपोकेलीमिया, ब्लड कीटोन्स विल बी इंक्रीज्ड, ब्लड ग्लूकोज विल बी रिड्यूस्ड, PCV डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो PCV विल गेट एलिवेटेड. तो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री. उसके बाद पिंक, दिस इज अ
सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज द पिंग. आपको पिंग मिलेगी ऑस्कल्टेशन और परकशन के टाइम पे. देन डिफरेंशियल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं आप. रूमन में ब्लोट हो गया है तो एरिया जो होता है बेसिकली इसका जो है 7th to 12th रिब में आपको मिलेगा. लेफ्ट फ्लैंक में कम्प्लीटली फुली एरिया नहीं होता ब्लोट का. देन सीकल डायलिटेशन टॉर्जन में अगेन आपको उसके केस सीकल डायलिटेशन और टॉर्जन में भी आपको स्कैंटी फीसेस मिलेंगे. बट आपको सीकम जो होता है उस टाइम पे जब आप राइट फ्लैंक चेक करेंगे तो आपको पैल्पेबल सीकम मिल जाएगा रेक्टल एग्जामिनेशन में. टीआरपी में पिंग नहीं होती. बेसिकली पिंग जो होता है वो इसी में ही आपको ऑब्जर्व होगी और किसी में नहीं होगी. देन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, रोलिंग एंड राइट फ्लैंक, लेप्रोटोमी, एबोमोइजो. बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है इसका. ठीक है, सर्जिकली इसको ट्रीट करना होता है. एबोमेजोपेक्सी उसको एमेंटम के साथ जोड़ देते हैं. देन रिटेन प्लेसेंटा, आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा. ये गायनेकोलॉजी की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा. बट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बेसिकली ये इसका एक रीजन जो होता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा वो इसका न्यूट्रिशनल रीजन भी होता है. कैल्शियम की रिडक्शन, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी आरओपी जो होता है वो हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस, बेसिकली इसके हार्मोनल रीजंस भी रहते हैं. बट हार्मोनल रीजंस के अलावा इसका बेसिक रीजन एक ये भी रहता है. जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तब भी आपको आरओपी देखने को मिलेगा. सो इट इज ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन, retained after birth या retained placenta. Failure to expel the fetal membranes or placenta within 12 to 24 hours in cattle or 6 hours in mares and so after parturition. It is the most common post-parturition reproductive disorder in dairy cattle. Then hypocalcemia आपको मिलेगा because of lower calcium levels. तो uterine smooth muscle contractibility reduce हो जाती है. And even जो cartilagens और caruncles जो होते हैं वो separate नहीं हो पाते हैं. देन सेलेनियम एंड विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के केसेस में भी आपको ये देखने को मिलेगा. इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन. देन प्रीमेच्योर कार्विंग में, स्टिल बर्थ, एबॉर्शन के केसेस में भी होगा. डिस्टोकिया के केसेस में भी. सो मल्टीपल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आर देयर. बट एक उसका रीजन हाइपोकैल्सीमिया इज ऑल्सो देयर. सो कॉटिलेडनरी फीटल विलाई विल सेपरेट फ्रॉम मैटरनल कैरंकल्स विद इन 6 to 12 आवर्स. ये नॉर्मल केसेस में है. लेकिन जब ये फेलियर हो जाता है, फेलियर टू एक्सपेल द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी तो ये लूजन अप भी नहीं होगा एंड देन इट विल नॉट एक्सपेल. सो इम्यून मीडिएटेड रिजेक्शन, फेलियर, मल्टीपल रीजंस विल बी देयर. एक रीजन हाइपोकैल्सीमिया भी रहता है. देन क्लिनिकल साइंस, विजिबल हैंगिंग फीटल मेम्ब्रेन, फीटल ओडर, पूरल एंड फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड, straining tenesmus due to weight of retained membrane. Then long term cases में fertility will get reduced. Endometritis, it will basically ROP की वजह से metritis mastitis syndrome भी हो जाता है. Then WBC will get higher, increased serum acute phase proteins, calcium will reduce, hypocalcemia. Uterine cultures में आपको E. coli और other Archaeobacterium pyogenes, pus forming bacteria will also be there. Fusobacterium necrophorum. Okay, it will also cause pus in the animal. Then diagnosis cases में clinical diagnosis, एक तो visibly you will observe the visible membranes. Then rectal vaginal examination से भी आप इसको check कर सकते हैं. Then sometimes prolapsed uterus आपको देखने को मिलेगा. तो उसमें पूरा का पूरा uterus आता है. But इसमें जो होती है इसमें fetal membranes you will see. Vaginal prolapse में भी again vaginal wall you will see. Puerperal metritis में retained placenta के बाद ये प्यूरपेरल मेट्राइटिस भी हो सकता है. सेकेंडरी कॉज ऑफ मेट्राइटिस एंड मेस्टाइटिस. देन ट्रीटमेंट क्या है इसमें? बेसिकली ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड किया जाता है विद इन 24 आवर्स ताकि एकदम से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रमोट हो जाए. देन प्रिवेंशन के लिए अगेन सेम, हाइपोकैल्सीमिया नीड्स टू बी प्रिवेंटेड. देन लास्टली द कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट. अभी हमने जो भी प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स पढ़े उसके लिए हमें कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट इज बेसिक मेजरमेंट जिससे हम चेक कर सकते हैं कि एनिमल में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है या नहीं है. सो लैब मेजरमेंट ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट्स टू रिफ्लेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द हर्ड और इंडिविजुअल विद और विदाउट क्लिनिकल डिजीज. यानी कि क्लिनिकल डिजीज हो या ना हो उससे पहले हम उसको चेक कर लेंगे. ओके, उससे पहले हम उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग कर लेंगे. सो दैट इज थ्रू कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग based on the concept that blood composition becomes abnormal only when the homeostasis is upset.
तो हमेशा जब भी होम्योस्टैसिस अपसेट होगा तो उस टाइम पे ब्लड में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. सो हीमोग्लोबिन, पीसीवी, ग्लूकोज, बर्न, कैल्शियम. सो बेसिकली हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और इससे ही हम चेक कर सकते हैं कि एनिमल में कौन सी न्यूट्रिशनल डिजीज जो है वो डेवलप हो सकती है. सो हीमोग्लोबिन, पीसीवी, पीसीवी फॉर द dehydration also, glucose, burn, calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium. So basically mineral profiling भी की जाती है. Then total protein, albumin, copper, iron and non-esterified fatty acids. So ये full profiling की जाती है. Then mini profile, इसमें से कुछ important चीजें ही हम चेक करते हैं. जब एनर्जी प्रोटीन असेसमेंट किया जाता है थ्रू ब्लड ग्लूकोज, बर्न, एल्ब्यूमिन एंड एजी रेशियो. देन इंडिविजुअल के केसेस में प्रिवेंशन के लिए बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, एसजीओटी, ब्लड ग्लूकोज, सीरम यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एल्ब्यूमिन. 4 to 10 वीक्स पोस्ट काविंग को अगेन इसको बार बार रिपीट किया जाता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए. देन कैसे चेक करते हैं? ड्राई काउज में और हाई यील्डिंग काउज में एनिमल की ग्रुपिंग कर लेते हैं एंड देन उसमें से ब्लड कलेक्ट किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. मोर देन 3 times पर ईयर इसको चेक करते हैं. समर में, ऑटम, विंटर, अलग अलग सीजन में इसको चेक कर सकते हैं. When nutritional imbalance is suspected, then ब्लड से HP, PCV चेक करते हैं. सीरम से कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बेसिकली ऑल द अदर. ब्लड में हीमोग्लोबिन एंड पीसीवी मोस्टली जो सीरम लेवल्स होते हैं उसी को ही चेक किया जाता है. एबनॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं बेसिकली एबनॉर्मल वैल्यूज से हम इसको चेक करते हैं एंड एवरेज वैल्यूज हम इसकी एस्टैब्लिश कर लेते हैं. तो ब्लड ग्लूकोज बेसिकली ऑल दीज जो अभी तक हमने क्लिनिकल पैथोलॉजी जितनी भी पढ़ी थी वो ही यहाँ पे अप्लाई होती है. बेसिकली यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखनी है कि प्रोडक्शन डिजीजेस को चेक करने के लिए कॉम्प्टन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट जो होता है CMT वो इम्पॉर्टेंट होता है. CMPT जो है वो दैट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. सो दैट वाज ऑल फॉर न्यूट्रिशन. हमने इसमें सारी चीजें कवर कर ली हैं कम्प्लीटली, थॉरली. वी हैव स्टडीड होल ऑफ द न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ लीजिएगा मुझसे. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर न्यूट्रिशन क्लास.